Namaste, Namaskar, and welcome to this exciting new episode of Satyology, Debunking Mythology. In this show, Sat means truth, Logos means a study or science, Satyology means a science of truth or study of truth. And opposite of that is mythology. Myth is a Sanskrit dhatu, which means a lie, fake, or imagination. The faith-based colonialists coined the term mythology to debunk the historicity of the Vedic scriptures and Vedic histories. And that's why we see a lot of confusion. The whole point was that people should actually reject the Vedic scriptures and Vedic histories and follow a Christian or Islamic theologies. Now we all know that Sanatan Dharma or Vedic culture, which Vedic texts promote Sanatan Dharma. It is the oldest known scriptures to humanity. It is both a religion as well as a way of life, culture. And one very famous Indian saint was asked, according to Western civilization, and that time he stopped them. He said, "Where is the Western civilization?" He said, "You drink the milk of a cow and you kill the mother to kill the cow. Where is civilization? Because civilization is built on kindness, compassion, cleanliness, purity, and also built on astikyam or the faith in a civilized way of life, which is promoted by Vedic culture." Today, I have a very special guest who is an author of many books, but one of the latest books he has written is on this exact topics, Vedic Sanatan Dharma. So without delay, let us welcome Shri Manoj Singh. Namaste, Manoj. Pranam Aditya Bhai, Pranam. So, you have written variety books. The earlier we have discussed a couple of them before. So what made you write this special book on Sanatan Dharma? Let me put in this way. Actually, this is my first book, rather, I will say. First book in this particular field, but it published after a long gap. And earlier I was writing novels and travelogue also. It's a beautiful, a small, I will like to narrate how it came all the way. In those days, I was writing one book called Swarg Yatra. Basically, it's a traveling between Himalayan ranges from Srinagar to Leh Ladakh. मुझे ऐसा लगता है अजित भाई that is the only place one everybody should see. And it's a heaven, it's a स्वर्ग है, actual स्वर्ग है. So I gave that name as Swarg Yatra. So I used to frequently travel between Srinagar to Ladakh. And in between there is a Kargil, Dras, and then there is a Sindhu Nadi also, Sindhu, a part of India. I don't know what exactly happened, but it inspired me to go toward the Vedas. It all of a sudden it was a transformation in me. One fine evening, I was in Penguin Lake. You see, it's a very famous, half in China and half in India. It's I don't have a word to describe and explain the beauty, the landscape, and the उसको वर्णन नहीं किया सकता था. I was just sitting there. I saw little garbage over there. वहां पे बहुत सारे किसी ने कोका कोला और वो सब चीजों के और पेप्सी के और चिप्स के पैकेट्स मुझे अचानक दिखाई दे दिए. मेरे दिमाग में आदित्य भाई पहली बात यही आई कि हे ईश्वर ऐसा कुछ कर कि यहाँ पे मनुष्य ना आ सके. You will not believe that was my first feeling. And that was my last line of that book, स्वर्ग यात्रा. कि मैं नहीं चाहता, जो पहले मैं सोचता था कि everybody should visit, I prayed to God that nobody should visit. ये पूरा के पूरा इस एरिया को भी बर्बाद कर देंगे. They will damage the heavenly thing. From that place, I started reading the Vedas. And lastly, आपका हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे. मैं आर्य पुत्र हूं के बारे में, जिसमें पूरी थ्योरीज को मैंने पूरे सतयुग को वर्णन किया. बट उस सतयुग को लिखने से पहले आई रोट वन बुक इन हिंदी, वैदिक सनातन हिंदुत्व. एंड इन दैट basically the concept was very simple from where I started. I want to put that statement over here. In those period I read
द हॉकिंस फेमस फिजिकिस्ट ऑन दोज डेज, कि इस प्लैनेट को हमें छोड़ना पड़ेगा इस सेंचुरी के एंड तक. सो दैट क्लब मी कि अगर हमने इस सेंचुरी के एंड तक इसको छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? जहां हम जाएंगे, क्या हम वहां पर ये हमें हिमालयन रेंजेस मिलेंगी? विल वी गेट द सिंधु रिवर? विल वी गेट द व्हेल, द शार्क, द ब्यूटीफुल स्मॉल फिशेस जो पेंगुइन झील में सुंदरता से घूम रही थी, तैर रही थी? विल वी गेट टू सी द एलिफेंट ओवर देयर? विल आई गेट टू, क्या मैं सुगंध ले पाऊंगा गुलाब के फूलों की? क्या मुझे इस तरीके के सुंदर वातावरण वहां दिखाई देगा? अगर नहीं होगा तो फिर मैं वहां जाके करूंगा क्या? एंड इन दोज डेज आई सॉ वन मूवी इन अमेरिका, यू मस्ट हैव सीन, वॉली, जिसमें उन्होंने दूसरे प्लेनेट का डिस्क्रिप्शन बड़ा सुंदर किया हुआ. इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर कि हम दूसरे प्लेनेट में रह रहे हैं. तो इतनी मिजरेबल लाइफ मैंने उसमें देखी. मैंने कहा क्या ये हमारा जीवन ऐसा ही होगा? तो इन बिटवीन आदित्य भाई आई थॉट व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन. सो आई फाउंड द रियल सॉल्यूशन इज वैदिक सनातन हिंदुत्व. वैदिक काल से चली आ रही सनातन संस्कृति जिसे आज हिंदुत्व कहते हैं. एंड दैट वाज precisely written in Hindi originally. And in that book, I wrote everything regarding Sanatan, right from starting to end. And then it is translated in English, named Sanatan Dharma by the famous publishing house Bloomsbury. A little variation, little updation, little addition, lot many changes are there for Western world. So point is कि ये जो मुझे पता लगा कि ये ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, उस समय में कोरोना का प्रॉब्लम आदित्य भाई नहीं था. कैन यू बिलीव व्हेन आई वाज लास्ट एडिटिंग दिस सनातन धर्मा, माय इंग्लिश बुक, आई एडेड वन पैरा इन दैट व्हिच इज वेरी रिलेवेंट इन टुडेस टाइम. द पैरा विल स्पीक इन दिस वे, if at all this coronavirus is man-made, it clearly indicates where we are heading. And if at all it is a natural one, then it is showing the science its place. You see where I can take you. And Aditya Bhai, the simple point is कि आज इस कोरोना में जो खास करके अमेरिका प्ले ब्लीड कर चुका है, इंडिया ब्लीड कर रहा है, what is the solution? The solution is very simple, Sanatan. हम आज की डेट में जो भी कर रहे हैं, चाहे हम आइसोलेशन में रह रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, whatever we are doing, basically if you will see in a deep way, it is somewhere related to, या हम योगासन कर रहे हैं, या हम जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब के सब सनातन से है. So this is how it came, and it has become more relevant in today's time, I think, Adit bhai. जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, when we talk about Sanatan Dharma, a general impression goes out that Sanatan Dharma makes you weak in your local responsibilities, like kartavya. Generally say that Hindus have become extremely subservient, मतलब झुक जाते हैं हर किसी के सामने, और सनातन धर्म लोगों को कमजोर बनाता है. उस पे आप सहमत होते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं. Let me put in very simple answer, Aditya, for this. Although we are going very almost to the very toughest side, although I was thinking to start with a simpler one, but I will answer you in a very beautiful way, a picture way. I have written one book, you must have known, मैं आर्यपुत्र हूं. Just see the cover page of it. A masculine, a warrior. Correct. He's Arya. He's the real Arya. You see, this is my very famous book. हम लोग इसमें अभी 2 चैप्टर पे डिस्कशन अभी तक किया है. आप इसके कवर पेज को देखकर आप सब कुछ समझ सकते हैं कि this is my Arya. So whosoever has got any confusion, please see this picture. You can't read it, my Aryaputru, no problem, but see this picture. हाँ, मेरी लास्ट बुक आई थी श्री राम के 1 arrow 1 kill. हाँ, it's the same thing. अच्छा, उसी पे मैं बताइए मुझे कि राम जी को देखकर क्या लगता है कि राम जी कमजोर थे? वही तो मैंने पूरी बुक में डिबंक किया है कि वो सारे दिन रोते नहीं थे. 2 घड़ी के लिए सिर्फ उन्होंने only for 48 minutes
He expressed his sorrow to Lakshman. अब नहीं आदित्य भाई, मैं अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, मैं कहता हूँ कल्पना में भी सपोज कीजिए, मान लीजिए कि चलिए वो रामानंद सागर की स्टोरी को मान भी लेते हैं, वो किस लिए रोते थे? सीता जी के लिए रोते थे ना. दैट इज हिज ब्राइटर पार्ट, दैट इज हिज इमोशनल पार्ट, दैट इज हिज सोशल पार्ट. अगर ये वाला पार्ट आदित्य भाई हटा दीजिए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम एंड रावण? Correct. Try to think this way. So rather Ram is a better person in a sense कि he is having a weapon, he is having a power, but at the same time he is sensible also. Right. He has got a commitment also. He is a human being also, and that is what Sanatan is. He is not inhuman, but he is not कमजोर. So पहली बात तो जो ये सोचते हैं कि हिंदू सनातन जो है कमजोर करता है, वो बेसिकली कमजोर नहीं करता, कमजोर अब कराया गया है. इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं. एंड शब्द जो होते हैं ना, वर्ड, इट इवॉल्व्स विद द सोसाइटी. आदित्य भाई, वी हैव गॉट द वर्ड शस्त्र एंड शास्त्र. Can you tell me any other language which has got so much relationship between these two words? Correct. Any language, in any language, do you have any relationship, so binding relationship between these two self-speaking words like Shastra and Shastra? They are so closely related. So after a person like you, who has written the book on Ram, who is very much attached to Mahabharata even, Yudhishthira also we have been praising in last our conversation. You tell me, क्या ये दोनों आपको कहीं से भी कमजोर दिखते हैं? बिल्कुल नहीं, सशक्त है. सशक्त है. अब वो सशक्त अगर मान लीजिए अपनी शक्ति किसी पर भी आजमाने लगेंगे, तो फिर वो पूजनीय नहीं रहेंगे ना, फिर वो राक्षस बन जाएंगे. तो ये तो बिल्कुल भी, हाँ, ये मैं कह सकता हूं. आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी पर्टिकुलरली इंडियन थ्योरीज में कि बुद्धिज्म के बाद ये प्रॉब्लम आई है या जैनिज्म के बाद ये प्रॉब्लम आई है. आई डोंट वांट टू कमेंट सो स्पेसिफिकली कि ऐसा कह के मैं उसको बहुत शॉर्टन नहीं करना चाहता, कोई सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता और इजी टारगेट्स नहीं करना चाहता. बट यस, देयर इज अ सिस्टमैटिक चेंज इन इंडियन जो आपकी सिस्टम है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, और वो मुगल पीरियड में और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में सबसे ज्यादा डैमेज किया गया. तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. सत सनातन का जो संधि विच्छेद भी करेंगे, सत और अनंत जिसका अंत ना हो, तो वो सनातन मतलब हो गया कि जो ऐसा सच जिसका कभी अंत ना हो, सनातन. इट इज अविनाशी, अविनाशी, ऐसी अजन्मा, अविनाशी तद्विद्धि. जो जिसका जन्म नहीं हुआ है और जो कभी भी जिसका विनाश नहीं होगा, उसका ही नाम सनातन है. यू टेल मी ए रियल वर्ड इन इंग्लिश जिसके पास सनातन का वर्ड नहीं है, वो सनातन को कैसे डिफाइन कर सकता है? वी हैव गॉट द वर्ड सनातन बिकॉज वी इवॉल्व्ड थ्रू दैट वे. तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपके इस डिस्कशन से हमारे. तो सनातन शब्द का अर्थ तो मतलब हो गया वो रिलेटेड टू आत्मा ओनली, है ना? Not exactly. It's very, but yeah, it's a beautiful way. How you define the Sanatan? If you will ask me this question, you can ask me this way. How you will define Sanatan? Well, Adit, I will ask you, who will be Sanatani? To elaborate this question further, I will ask another question. To whom we will call Sanatani? Whether you will call Sanatani to person who is praising, जो भगवान राम की पूजा करते हैं? नहीं, क्योंकि देयर आर मैनी जो राम की पूजा नहीं करते, कृष्ण की पूजा करते हैं. तो क्या हम उनकी पूजा करें, उनको सनातनी माने जो राम और कृष्ण की पूजा करते हैं? नो, देयर आर मैनी जो सिर्फ शिव की पूजा करते हैं. सो अगेन वी विल ऐड, क्या ये तीनों की पूजा करने वालों को सनातनी माना जाए? नो, देयर विल बी पीपल लाइक कॉल्ड जो विष्णु की वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं. अगेन विल बी कॉल कि ये चारों पांचों लोगों को मानने वाले हो. नो, अगेन देयर विल बी पीपल जो किसी को भी नहीं पूजा करते हैं. सो अब पॉइंट कहीं कहीं ये आता है कि फिर ये सनातनी है कौन? इट्स वेरी डिफिकल्ट. सनाती कैन बी ए बस्तर वाला पर्सन, वो जो कि बरगद की पूजा कर रहा है, जो तुलसी की पूजा कर रहा है, जो आम का पेड़ लगा रहा है, जो नदी की पूजा कर रहा है, जो गंगा किनारे पूजा कर रहा है. तो इन ए माय वे सनातन इज, इफ यू विल ऐड द वर्ड धर्म,
then it has become a Sanatan Dharma. If you add the word Sanskriti, then it's a Sanatan Sanskriti. So how you will go further, how you will define it in a detailed way. So मेरा ऐसा ख्याल है Sanatan is a, when Sanatan is related to dharma, it is a Manav dharma. The way Manav evolved, Sanatan evolved. When it comes to Sanskriti, it becomes Prakritik Sanskriti. So Sanatan is a continuity, is a word which cannot be described in English, but it can be felt. It can be understand. It is easy to understand, but difficult to explain. Like Sanatan is everybody. The whole world is Sanatani. The whole world is Sanatani. There can be different of opinions, different of way. But the moment you, उसके मूल में क्या है? मूल में, जैसे मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि सभ्यता के मूल में, सनातन सभ्यता के मूल में सनातन संस्कृति है. सनातन संस्कृति के मूल में सनातन संस्कार है. सनातन संस्कार के मूल में धर्म है. और धर्म का आधार वेद उसको डिफाइन करते हैं. So likewise, these are the levels through which we can understand what Sanatan is. But again, you cannot, like, you can easily describe Islam, you can easily describe Isai, but it is not easy to describe the Sanatan. That's right. तो एक क्वेश्चन आता है धर्म के ऊपर. सो जैसे धर्म की परिभाषा मैंने बहुत बार लिखा भी है, बोला भी है, मैं रिपीट करूंगा और आप भी उसमें प्लीज ऐड करिए. धर्म मीन्स इंट्रिंसिक क्वालिटी, एसेंशियल वैल्यू, a law, depending on how it is used. Dharma has many meanings, but essentially it is truth. Raj Dharma, the truth of governance. Yuddha Dharma, the truth of fighting a war. Yuddhecha Palayanam. And Chhatra Dharma, the dharma or the kartavya or duties, compulsory duties of a warrior. Or Brahma Karma Svabhavaja, Brahma Karma, like duties of a varna, of Brahman. So that is, we all know truthfulness, cleanliness, all these things are there. Vaishya Karma Svabhavajam. So dharma for the Vaishya is Krishi Goraksha Vanajyam. These are the duties. So जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, so it is the eternal duties of the soul. Isn't that right? Because अब now if you, आपने एक दूसरा पॉइंट बोला मानव, तो उसका जो सनातन धर्म का इम्प्लीमेंटेशन है वर्णाश्रम के रूप में होता है. So do you think what do you think on how it is connected to varnashram, Sanatan Dharma? Yeah, varnashram, see, Ajit bhai, you are so learned person, so you आपने इतनी सारे points क्लब कर दिए कि मतलब it is really to पहले तो उसको सारे को समेटना है मुझे. आपकी सारी बातों को पहले मुझे समेटना है और समेट के फिर उसको धीरे धीरे अपने अंडरस्टैंड करके फिर प्रस्तुत करना है. It is sometimes it becomes very interesting to discuss with you because we start with something and we go somewhere else and we enjoy those discussions. It always happens. It's a beauty when we talk together. जब आपके साथ बैठता हूँ तो फिर अलग ही तरह का कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है. So you started with Manav and then we landed to Varnashram. See, why I specifically said Manav Dharma ke saath, because there is a dharma, like I will give one very beautiful example, like there is a dharma of Agni also. See, Agni Correct. also has got some dharma. Okay? And Veda started with the dharma of Agni. We pray, जो पहला मंडल का पहला सूक्त का पहला जो मंत्र है वो अग्नि को ही समर्पित है. अग्नि की पूजा से ही वेद स्टार्ट होता है. So Agni has got some its own dharma. अब वही धर्म अगर हम ले लें तो it will be a little in a different way it will go. Yeah. The same dharma when comes to Gita, it becomes something different. So basically why I said Manav, because we don't want to become a Danav. तो जैसे आप डिबंक करते हो ना माइथोलॉजी को, तो डिबंक द दानव, टू बिकम ए मानव, द लिंक, द ब्रिज इज ओनली धर्मा. द what दानव is doing is a dharma, what Manav is doing is a dharma. It's a simple way to understand and comparison. By comparison you can make it a more systematic way. One thing, fine.
Now we to just to simple it, because otherwise it will go very different way. अब एक वर्ड आया आपका वर्णाश्रम. See, varnas. One point I would like to add here, Adit bhai. See, Sanatan means Ajanma, and Avinasi means very old, and this is the only civilization or Sanskriti or Dharma, whatever you call it, which has got prehistory also. We don't believe that it started from this point, or it started from this book, or it started from this great personality. No, it is even prior to Satyuga also. It is prior to Sri Ram period also. It is prior to even, like why I said this particular Satyuga means even it is when it comes to Yajurveda में जो रुद्र का वर्णन आता है, वो सोसाइटी सिविलाइजेशन से पहले का पीरियड है. उसके बारे में मैं आर्यपुत्र की जब हम चर्चा करेंगे कभी 3rd चैप्टर में, जो हमने 2nd चैप्टर के बाद छोड़ दिया है, तो हम उसके आएंगे. तो बहुत सारी चीजें. कहने का तात्पर्य है कि इतना लंबा सिविलाइजेशन का पीरियड है, लाखों साल का. सो देयर कैन नॉट बी वन नेम. Earlier it used to be called something else, then it is called Varnashram, then nowadays it is called Hindutva. Correct. Hinduism. तो वर्णाश्रम वैदिक काल में उसका नाम था, फिर वह बाद में होते होते हिंदुत्व हो गया. I will add 2 points here just to update and to make the things, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें. वर्णाश्रम में भी बहुत सारे धर्म हैं. ब्रह्मचर्य आश्रम का अपना धर्म है, गृहस्थ का अपना धर्म है, वानप्रस्थ का अपना धर्म है, एंड देन देयर आर मेनी थिंग्स. फिर उसी में हम 4 अपने जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सोसाइटीज के हम जो ब्रांचेस है, उनका अपना अपना धर्म है, जहाँ चारों वर्ण की हम व्यवस्था बताते हैं. इसके अलावा अगर हम धर्म की बात करें, तो इस धर्म की ब्यूटी ये है आदित्य भाई, कि जो वैदिक नॉलेज है जिसकी सारी चीजों का आधार है, उसको इतना ब्यूटीफुल वे में सोसाइटी के अंदर इजी वे में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे कि जो आदमी वेद ना पढ़ सके, जो धर्म को ना समझ सके, वो जाने अनजाने धर्म को प्रैक्टिस करे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं आश्रम व्यवस्था पर, वर्ण और आश्रम में आश्रम व्यवस्था पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बिकॉज आपने ये वर्ड चूज कर लिया, इसके मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा हूं. अगर वर्णाश्रम में बहुत डिस्कस हो सकता है, मैं आश्रम व्यवस्था की एक छोटी सी व्यवस्था पे जाता हूं. गृहस्थ से पहले ब्रह्मचर्य है. वाई? लोग जनरली ऐसा, आपकी जैसे ये एक मिथ फैलाया गया ना कि हम लोग कमजोर हो जाते हैं हिंदुत्व में. एक मिथ और फैलाया गया है कि हम लोग सिर्फ त्याग पुरुष वाले हैं, सन्यासी टाइप के लोग हैं, हम सिर्फ भजन करते हैं, मंडली लेके ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, और ये पीले कपड़े पहनकर भिक्षा मांगते रहते हैं. समथिंग लाइक दैट ऑफ अ मिसकंसेप्शन इज आल्सो देयर. सो आई वांट टू मेक दैट पॉइंट रेस्ट ओवर हियर. इस आश्रम व्यवस्था के द्वारा मैं एक पॉइंट बताकर उसको रेस्ट करना चाहता हूँ, जो एक लोगों के अंदर एक मिथ है कि ये सब लोग भजन करते हैं, त्याग देते हैं. वो उनको ये भी नहीं पता कि विश्वामित्र जी के साथ उनका परिवार रहता था, इवन भरद्वाज जी के साथ उनका परिवार रहता था, सारे ऋषि मुनियों के साथ परिवार रहता था, कुछ लोगों के साथ नहीं रहता था. इट कैन बी डिस्कस लेटर ऑन. जब भगवान राम के साथ उन्होंने विशाल नगरी में जब घुसे थे, तो उनका पुत्र सुमति वहां का राजा था. एग्जैक्टली, सुमति उनका राजा था. अब मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा, देखिए ब्यूटीफुल हाउ दे इनकॉर्पोरेटेड द ब्यूटीफुल थिंग्स. व्हाट? गृहस्थ आश्रम इज बेसिकली ए भोग आश्रम. आपको पृथ्वी को भोगना है, आपको अपने संतान उत्पत्ति करना है, आपको परिवार चलाना है, आपको समाज का निर्माण करना है, आपको सब कुछ करना है. उसको हम बहुत सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भोग का आश्रम है, जबकि वो भी भोग का आश्रम नहीं है. लेकिन उसके ठीक पहले ब्रह्मचर्य में त्याग का आश्रम है. क्यों? जिससे कि आप त्याग कर सकोगे तभी तो गृहस्थ को आप एंजॉय कर सकोगे. जो गृहस्थ धर्म का पालन करने की जो आपके अंदर फीलिंग आएगी, उसके सारे बीज आपको ब्रह्मचर्य में डाले जाते हैं कि आपको सारे ऋण उतारने हैं. उसमें आपको पितृ ऋण उतारना है, आपको देव ऋण उतारना है, आपको और गुरु ऋण उतारना है. उसकी सारों की बीज आपको ब्रह्मचर्य में डाला जाती है. अगर आप पहले दिन से ही, जैसी वेस्टर्न थ्योरी है, अगर आप भोग करने लगेंगे, तो आप ना तो भोग का एंजॉयमेंट करेंगे, ना ही अपने धर्म का निर्वहन करेंगे.
तो आपको एक पीरियड दिया गया कि आप इस पीरियड के लिए आप तैयार रहिए, आपको इस 25 से लेके 50 तक के बीच में गृहस्थ आश्रम सब कुछ करना है। सब कुछ वो करना है जो पृथ्वी पर जो भी आपका भोग है, जो आपकी भौतिक व्यवस्था है। फिर आपको धीरे से उस भौतिक व्यवस्था से वानप्रस्थ के द्वारा निकाला जा रहा है। क्यों अगेन? क्योंकि जो दूसरी पीढ़ी आ रही है, वो अपना भोग का व्यवस्था करे। आप समझ रहे हैं? उसके बाद वानप्रस्थ में सिर्फ यही नहीं है कि उसको त्याग कर देना है सब कुछ। अगेन इट विल बी रॉन्ग। अगर हम ध्यान से देखें कि वानप्रस्थ में एक्चुअली में होता क्या था, वानप्रस्थ में वन में जाकर वो नगर और गांव के बाहर जंगल में जब रहते थे, तो वो अपने ही बच्चों के साथ साथ दूसरों बच्चों का भी ज्ञान देते थे। उस कुटिया में लोग आया करते थे, वहां भी वो धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, समाज धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, नगर के धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कुल के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार को नहीं निर्वाह कर रहे हैं। और वही वानप्रस्थ वाला जब सन्यास में चला जाता था, तो पूरे विश्व का कल्याण करता था। वो सन्यासी हो जाता था, वो ऋषि हो जाता था। तो ये इट इज वेरी वेरी इंटरलिंक्ड। जो धर्म की व्यवस्था है, जो संस्कारों की व्यवस्था है, सब इंटरलिंक्ड है। हाँ आदित्य भाई। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला और हम वापस अभी आ जाते हैं। थोड़ा सा जर्नी लिया हम लोगों ने थोड़ा अलग दिशा में, विच वॉज इम्पोर्टेंट कि मैं लोग, आपने बहुत अच्छा कनेक्ट किया अभी वर्णाश्रम और सनातन धर्म पे। तो बहुत सारे जो साधु हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि वर्णाश्रम के द्वारा सनातन धर्म को प्रैक्टिस किया जाता है अपने समाज में। तो या सनातन धर्म जो आत्मा का धर्म है, वो मनुष्य जीवन में वर्णाश्रम के थ्रू स्थापित किया जाता है। और वर्ण और आश्रम जो है पूरे जगत में अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं, किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। हर जगह टीचर्स है, हर जगह पुलिस है, हर जगह ये कहीं पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है रक्षा करना दूसरों की, और जब वो रक्षा नहीं करते हैं तो दस्यु बन जाते हैं, दे बिकम डाकू और दस्यु, वट एवर यू कॉल देम, संस्कृत वर्ड है दस्यु। और बिजनेसमैन ऐसा बोले कि सिर्फ अमेरिका में बिजनेसमैन है, वो भी फैक्ट नहीं है। अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, हर जगह। और जो जॉब करते हैं वो भी हर जगह। और जो समाज की सेवा करते हैं, जैसे वैद्य, ज्योतिष, ये सब समाज की सेवा करते हैं, अलग तरह की सर्विसेज देते हैं, आर्ट्स। तो अभी वापस टॉपिक पे आते हैं, सनातन धर्म के टॉपिक पे। तो आपको, जैसे आपने बताया अभी ऑलरेडी कि सनातन तो पूरे पृथ्वी पर है, हर मनुष्य में, हर जगह है सनातन। सनातन एक एक व्याप्त है, इट इज स्प्रेड एवरीवेयर ऑन द प्लेनेट। नाउ when we talk about Sanatan Dharma, dharma means dharma, kartavya, compulsory duty. So if Sanatan is vyapta everywhere, do you think dharma is also vyapta everywhere? या Is present या everywhere? या इट इज वेरी मच दैट। सी वेल, मतलब जैसे वायु है, वायु अपना अगर धर्म निभाना छोड़ देगी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा प्रकृति का। मतलब मानव को छोड़कर पूरी प्रकृति अपना अपना धर्म निभाती रहती है। आदित्य भाई, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं बहुत सिंपल वे में, कि मानव को छोड़कर सब अपना धर्म निभा रहा है। एक मानव ही, मनुष्य जो है, जो मनुष्य का धर्म है, वो मनुष्य धर्म नहीं निभा रहा। एंड वी हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट because of that simple reason. Can you give me one a 30-second by giving an example, a very brief, a very specific example? ये हमको कोरोना सिर्फ हम ही को क्यों तंग कर रहा है? ये किसी और को तंग क्यों नहीं कर रहा? किसी भी और स्पेसिस को तंग क्यों नहीं कर रहा? अगर उस स्पेसिस को तंग भी करता है, वो अगर कोई महामारी आती है तो एक डिफरेंट लेवल है, उनका एक अलग अलग रीजन होता है। उसमें भी ज्यादातर रीजन हम होते हैं। प्रकृति के अंदर अगर कोई भी समस्या आती है तो प्रकृति का कोई और एलिमेंट कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हमको छोड़कर। तो अगर हम यहां तक पहुंचे हैं, तो ये इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमने अपना धर्म नहीं निभाया। कोई ऐसा है, कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं, चाहे वो त्रेता युग में रावण था। अगर रावण अपना धर्म निभाना भूल गया, तभी तो राम को अपना धर्म स्थापित करना पड़ा। विभीषण था ना वहां पे लंका में धर्म निभाने के लिए। विभीषण वाज देयर, मंदोदरी वाज देयर टू टेक गिव द ब्रीफिंग्स ऑफ धर्मा। यू टेक द एग्जांपल ऑफ तारा।
तारा ने बाली से क्या कहा था? जो तारा ने बाली से कहा था वो भी धर्म था। इसका मतलब बाली के केव्स में भी, बाली के राजगृह में भी, बाली के उस गुफा में भी धर्म की व्याख्या थी। लंका में भी धर्म की व्याख्या थी। मंदोदरी ने बहुत प्रयास किया। इवन मंदोदरी को छोड़िए, जो सीता के साथ वो राक्षसनी का मैं नाम भूल रहा हूं, जो अशोक वाटिका में थी, उसने धर्म की व्याख्या की है। तो धर्म तो वहां था, लेकिन चूंकि हम ही ऐसे हैं जो अपने अधर्म का पालन करते हैं, अधर्म करते हैं, तो व्यवस्था यहां तक पहुंचती है, हर युग में पहुंचती है। और उसको वापस स्टेबलाइज करने के लिए ही श्री राम होते हैं। वही द्वापर में आके श्री कृष्ण हो जाते हैं। तो धर्म तो हर जगह है, एवरीवेयर इट इज। अगर धर्म नहीं होगा जिस दिन भी आदित्य भाई, उस दिन व्यवस्था आपकी खत्म हो जाएगी, सिस्टम आपको कोलैप्स कर जाएगा। जिस दिन भी सनातन धर्म एज ए बेसिक सोसाइटी के अंदर से खत्म हो जाएगा। मैं तो लोगों से कहता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि सनातन बहुत दिनों तक कैसे चल पाएगा। आई एग्री कि हिंदुत्व डेंजर में है, बट मैं एक लाइन जरूर कहता हूं कि जिस दिन सनातन धर्म के बेसिक्स सोसाइटी से खत्म हो जाएंगे, उस दिन ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। जिस दिन ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिस दिन तक है, जिस दिन तक ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इसका मतलब है तब तक सनातन धर्म एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो एक आदमी के द्वारा कर रहा हो। एक्चुअली रामायण में ऐसा बोला गया है, जब तक इस पृथ्वी पे पहाड़ रहेंगे और नदियां रहेंगी, तब तक रामायण का प्रचार चलता रहेगा। ये रामायण में लिखा हुआ है। तो ये ब्रह्म वाक्य है। मतलब तो मुझे हिंदुत्व के लिए कोई डेंजर लगता नहीं है। वो टेम्परेरी वीकनेस इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म में समझ नहीं रहे। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं, मैं जैसे बोलते हैं कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम अचितो मखे द्वापरी परिचर्यायाम कलौतधरी कीर्तना। ये 4 युग के 4 अलग ये धर्म है जो स्वाध्याय के धर्म है। स्वाध्याय, ये स्वाध्याय के लिए बोला गया है। लेकिन मनुस्मृति भी है। तो मनुस्मृति से आप सनातन धर्म में मनुस्मृति पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं समाज धर्म की रक्षा के लिए, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अधर्म का नाश करने के लिए श्री राम आए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण आए, अधर्म का नाश करने के लिए वाली का वध हुआ क्योंकि वाली ने एक धर्म का पालन नहीं किया था उसमें। तो जो वीकनेस जो अभी तो अधर्म का जो आपने बोला, मैं उसके बाद उस पर आऊंगा कि युग धर्म के ऊपर, जो आज का युग धर्म है। लेकिन आजकल जो है, जो हमारे सनातन धर्म पे जो पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन मैक्सिमम फॉलोअर्स आर इन द रीजन ऑफ इंडिया, मैक्सिमम अभी। तो जो इधर जो आक्रमण हो रहे हैं, तो गढ़ पे ही सारे आक्रमण होते हैं, कहीं बॉर्डर्स पे नहीं होते हैं। जहां सोर्स है वहीं पे आक्रमण होते हैं। तो आर्यव्रत पे तो बहुत लंबे समय से अटैक हुआ है अधर्मियों का, बहुत लंबे। रावण के काल में भी वही अटैक था। तो ऐसा नहीं है कि आज नया कुछ हो रहा है। हाँ, वो वहां तक आ चुके थे ना, जन स्थान तक आ चुके थे। जन स्थान तक अगर वो आगे, अगर उसको क्या नाम है उसका, विश्वामित्र जी जब ले गए थे उसको ताड़का कराने के लिए, तो ताड़का उसका एक तरह से रावण की रिप्रेजेंटेटिव वहां तक पहुंच चुकी थी ना। करेक्ट। अगर उसको नहीं रोका जाता, अगर उसको नहीं मारा जाता, तो वो और आगे बढ़ जाते, अयोध्या पहुंच जाते वो। करेक्ट। तो इट इज वेरी क्लियर कि वो राक्षस प्रवृत्तियों विचारधारा धीरे अयोध्या तक पहुंच रही थी। तो अयोध्या से निकलकर बाहर आपको मारना है, अदरवाइज घर में अगर आ जाएगी ताड़का, तो फिर आप तो घर खराब हो जाएगा ना आपका। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि जहां अधर्म का स्रोत है वहां पे आपको अटैक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और उसको प्रिपेयर करने के लिए विश्वामित्र जी ने पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एग्जाम लिया ताड़का वध करा के, श्री राम का। और ताड़का वध कराकर उनको फिर अस्त्र दिए, शस्त्र दिए, पहले दिन से नहीं दे दिए। कोई ये पूछ सकता है कि ताड़का वध के पहले भी दे सकते थे, ताड़का वध के बाद ही क्यों दिया? अरे भाई, उसके लिए ग्राह्यता तो चेक करनी चाहिए ना। उन्होंने ग्राह्यता चेक की, अवतार पुरुष हैं, ये तो विश्वामित्र भी जानते थे, लेकिन भाई टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। धरती पर श्री राम एक मनुष्य के रूप में आए हैं, तो मनुष्य के रूप में ही उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम उन्होंने दिया, करेक्ट, एग्जाम दिया, उनको फल मिला। फिर सेकंड एग्जाम अगस्त्य को पता था। भाई आप देखिए कितना सिस्टमैटिकली उन ऋषियों की स्ट्रेटेजी को आप समझिए कि विश्वामित्र ने पहला एक्सपेरिमेंट करवाया, सेकंड एक्सपेरिमेंट अगस्त्य ने कराया, उनको बकायदा वहां भेजा, उसी स्थान पर जहां शूर्पणखा थी। करेक्ट। और वो ये भी तो कह सकते थे भाई मेरे पास ही रह जा, मेरे पास
और ये भी कह सकते थे कि मेरे भाई तेरा अब तो कुछ समय बचा हुआ है, तू क्यों इधर उधर भटक रहा है, तू इसी आश्रम में रहे और फिर चले आना अयोध्या वापस। नहीं, रावण बोलता है उधर, रावण बोलता है कि मेरी नॉर्दर्न बाउंड्री जनस्थान है, उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री। मैं आपको बड़ा जोकिंगली बात कह रहा हूं कि अगस्त ऋषि को क्या पता नहीं था? सब कुछ पता था। हाँ, उसके बावजूद अगर आप ध्यान से वाल्मीकि रामायण के उस पर्टिकुलर एपिसोड को पढ़ें तो अगस्त ऋषि तो उनको बढ़ाई करके भेज रहे हैं। करेक्ट। बोलते हैं यहाँ पे सुरक्षा है, तुम पास में जाओ, उधर आपकी हाँ आवश्यकता है। हाँ, तो वो तो कह सकते थे कि यार तुम्हारा आखिरी का कुछ समय बचा हुआ है, ज्यादातर समय वो गुजार चुके थे श्री राम। हाँ, कहते भाई यहाँ गुजारो, बढ़िया से चले आना। फिर वो तो राजा की और करते, बड़ाई करते। उस जमाने के ऋषि मुनि अगर आज के युग में होते तो कहते यार ये तो राजा बनने वाला है, इसकी सपोर्ट करो भाई, कुछ मिल जाएगा हमें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इनडायरेक्टली इशारा। आज के लोग होते तो कहते भाई ये तो आने वाली पीढ़ी के, आने वाले समय के महाराज हैं, इनकी वो करो जरा। उन्होंने उनको जनस्थान भेज दिया। हाँ, शूर्पणखा मतलब समझ लीजिए उस सेंटर पॉइंट पे भेज दिया सीधे सीधे, कि जहां लफड़ा होना ही होना था। बिल्कुल बिल्कुल। और श्री राम को स्वयं अपना आश्रम बनाना पड़ा। लक्ष्मण ने बहुत सुंदर आश्रम बनाया उनके लिए गोदावरी के तट पे। अब वो भी एक पॉइंट अजित भाई, यहाँ पर मैं आपको इस पे एक वो देना चाहूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस युग में राजाओं के बच्चों को भी ये ज्ञान दिया जाता था कि कुटिया कैसे बनानी है। बिल्कुल। अगर लक्ष्मण को ये ज्ञान नहीं दिया गया होता कि कुटिया कैसी बनानी है, तो भाई साहब कोई आदमी रातों रात वहां जाकर कुटिया नहीं बनाता। नहीं बना सकता। वही कुटिया उन्होंने चित्रकूट में भी बनाई है लक्ष्मण भाई ने। बहुत सुंदर, यस। वो कुटिया उन्होंने चित्रकूट में बनाई है, और उस चित्रकूट की कुटिया का आप तो राम के कथा के मेरे से ज्यादा ज्ञानी आदित्य भाई, आपको बताना मुझे कभी कभी खराब लगता है, फिर भी मैं सप्लीमेंट कर देता हूं कि चित्रकूट की कुटिया का तो राम ने बड़ाई भी की और जनस्थान की कुटिया की भी बड़ाई की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीज को हम एक अगर स्टोरी रूप में स्वीपिंग रिमार्क में चले जाएं तो शायद अधूरा होगा। अधूरा हो। इसके नीचे जो सतह में एक मैसेज जा रहा है, वो ये मैसेज ये है कि राजकुमारों को भी अपने ब्रह्मचर्य काल में गुरुकुल के अंदर ये ज्ञान दिया जाता था कि भाई साहब जंगल में कैसे रहना है, जंगल में कैसे खाना है कंदमूल के द्वारा, कुटिया का कैसे निर्माण करना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। अगर हमारे आज के मॉडल स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को आप पिकनिक में ले जाएं और 2 घंटा छोड़ दिए जंगल में, तो भाग के आ जाएंगे वापस। आ वो तो जाएंगे। ऐसे नहीं रह सकते थे आप कोई भी करेक्ट आदमी। करेक्ट। यू गो एंड लिव एंड दैट टू ऑफ उस जमाने के दंडकारण्य में। इसका नाम ही दंडकारण्य है। उसमें आप एक दिन नहीं बिता सकते, उन्हें 14 साल बिताया है। तो राम ऐसे श्री राम नहीं बने हैं भाई। और 10 साल दंडकारण्य में घूमे। दंडकारण्य बहुत बड़ा रीजन है सेंट्रल इंडिया बहुत बड़ा का, रीजन है बहुत बड़ा रीजन है। 10 साल वो। घूमे। एक तरह से अब उस पर भी हम चले जाएंगे तो फिर भी एक बात तो कहीं अगर आप उसको ध्यान से देखें, वो बेसिकली भारत भ्रमण है वो। हाँ, करेक्ट। आप पूरी ज्योग्राफी को बहुत चेक कीजिए कि कहाँ से वो चित्रकूट से पूरा इधर बस्तर और पूरा मध्य प्रदेश का ईस्टर्न साइड, उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश का वेस्टर्न साइड, गुजरात महाराष्ट्र पूरा कवर करके जब नीचे जाते हैं एक अलग स्टोरी, बट पूरा कवर किया उन्होंने। बिल्कुल पूरा एंटायर कवर। बेल्ट ही कवर्ड। सुतीक्ष्ण मुनि, शतभृंगा मुनि, जिनके आश्रम पे रहे भगवान राम, यस। और अनेक जो जो सेवाएं की हैं, तो एक अनोखा उदाहरण मिलता है सनातन धर्म, क्योंकि ये एक सनातन धर्म के रक्षक है। और एक जगह मुझे, जब रावण रावण को अगस्त्य मुनि ने रोक के रखा है, अगस्त्य मुनि में, क्योंकि उसके उनके उसको श्राप, उसको डर है अगस्त्य मुनि से। तो एक रावण जैसा व्यक्ति भी भयभीत है सनातन धर्म के रक्षक से। और आज तो अगर मैं आज की सामाजिक दृष्टि में कंपेयर करूं, आज के विश्व के दृष्टि में, रावण अमेरिका का करीब 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है, 1000 से ज्यादा। जो आज अमेरिका की पोजीशन है, पर कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए मटेरियल कंपैरिजन, तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन मनुष्यों से डरता है, जो धार्मिक मनुष्य से। इसलिए बीच में, समुद्र के बीच में रहता है, क्योंकि उसका एक ही वरदान नहीं मिला है, मनुष्य से मृत्यु। वो उसने अपने घमंड में नहीं मांगा। तो यहाँ पर श्री राम का जो कैरेक्टर है, वो, मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ बट वो तो व्यक्ति है, बट चरित्र के बारे में बात कर रहा हूँ। श्री राम जो चरित्र है, वो सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक है। और एक तरीके से सनातन धर्म के एक क्या बोल सकते हैं उनको, कि एक
प्रतिबिंब है, एक मतलब सिंबल है, प्रतीक सिंबल, है, प्रतीक आदर्श है, आदर्श आदर्श, आदर्श मर्यादा, पुरुषोत्तम, मर्यादा है। है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो अभी आज की दृष्टि में कनेक्ट करता हूं, जो जो सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, वो श्री राम के इस चरित्र को भूल गए हैं कि अधर्मियों का नाश करना। तो उसके बारे में आपकी पुस्तक क्या बात करती है? देखिए, बहुत सरल शब्दों में अगर मैं इसको कहूं कि वो तो श्री कृष्ण ने कहा ही कि हर युग में, हर काल में जब जब अधर्म को करना है तो नाश करने में आऊंगा ही। उसका इनडायरेक्ट कहने का तात्पर्य, आपने भी बीच में एक शब्द कहा कि मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं आदित्य भाई, फिर भी जो मैं समझ सकता हूँ एक बहुत निष्पक्ष होकर, बिल्कुल एक आत्मचिंतन करके जो मैं देख सकता हूँ कि अमेरिका अपने पतन की कथा प्रारंभ कर चुका है लिखने की। और कितने दिन हुए हैं अमेरिका को चढ़े हुए? 100 ईयर्स, 200 75 ईयर्स, 75 हार्डली इवन 75 ईयर्स पहले तो शायद उन्होंने ब्लैक्स को शायद पावर भी नहीं दी थी, नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ब्लैक्स को हाउ पावर दिए इन्होंने करीब 50 वर्ष पहले। एग्रीड। और वो अमेरिका उसकी बात करता है जिसमें आज तक एक भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी। सेकंड पॉइंट, हाउ मच ओल्ड इट इज? हार्डली 100 ईयर्स, 200 ईयर्स। उसके पहले तो इतिहास ही इन्होंने गायब कर दिया। So it is a very inappropriate to talk with the Americans for America and to talk the dharma to tell them. So they have already started, मतलब वो कितना एक जो साइन वेव है, ये साइन वेव वाला मामला है। रावण तो सैकड़ों साल रहा है, रावण की तो कथा ही कुछ और है। ये अमेरिकन फिलॉसफी इस बात को नहीं समझ पाएगी, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा। वो इसलिए समझना पड़ेगा कि दरवाजे पर उनकी भी समस्या अधर्म की आ चुकी है। जन स्थान तक, उनके जन स्थान तक रावण पहुंच चुका है और ताड़का उनके घर में पहुंच चुकी है। बहुत अगर सारी एक उन्होंने साथ। अपने श्री राम को, अमेरिका ने अपने श्री राम को जन्म देकर अगर उन्होंने नहीं भेजा ताड़का वध करने, तो रावण की सत्ता आपकी अमेरिका तक पहुंच जाएगी। आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड indirectly. I have given a message. I think you understood it. तो ये आज के रिलेवेंस में मैंने आपको कहा, आज जो खेल चल रहा है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हम क्या करेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा धर्म की स्थापना कैसे होगी, मैं तो ये भी नहीं कह रहा, मैं तो अपनी बात भी नहीं कह रहा, मैं तो उसकी बात कह रहा हूं ना जो सबसे पूरे विश्व का आज की डेट में अपने आप को दादा मानता है, सुपर पावर कहता है। एक चीप शब्दों में दादा कह दो, और एक अंग्रेजी के बहुत क्या कहते हैं कोटेड वर्ड में कह दिए सुपर पावर। दोनों एक चीज एक ही है। गली का दादा होता है और विश्व का सुपर पावर होता है, वन ऑफ द सेम थिंग। लेकिन भाई साहब, इस सुपर पावर को समझना चाहिए कि अगर आपने धर्म की स्थापना नहीं की, जो वो नहीं कर रहा है, तो अधर्म उसके घर तक आ चुका है। करेक्ट। दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन, किसी भी सिविलाइजेशन ने इस वाले सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मिस्र खत्म हो गया, ईरान खत्म हो गया, मेसोपोटामिया खत्म हो गया, रोम खत्म हो गया, और इंग्लैंड का नंबर है मेरे भाई। इंग्लैंड के स्ट्रीट्स पर जो हालत हो रही है, इट इज नॉट मतलब उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो धर्म की व्याख्या है कि अगर आप अधर्म का नाश नहीं करोगे, यहाँ अधर्म कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ अधर्म कोई संस्था नहीं है, यहाँ अधर्म कोई रीजन नहीं है, अधर्म कोई रिलीजन नहीं है, अधर्म एक विचार है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो द्वापर में दुर्योधन के रूप में होता है और त्रेता में वो रावण के रूप में होता है, आज के युग में किसी और रूप में है, आज के रूप में किसी और रूप में है वो। तो जिस भी रूप में है अधर्म, अगर आप उस अधर्म का नाश नहीं करोगे तो धर्म के अंदर घुस जाएगा। एंड लुक एट हियर इन इंडिया, वी ऑलमोस्ट बाय एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी एंगल, चारों तरफ से अधर्म के द्वारा हमारा वार हो रहा है। लेकिन जाने अनजाने आदित्य भाई, हमने धर्म का पकड़े रखा। आदित्य ने धर्म पकड़ा रखा अमेरिका में, आज भी धर्म की बात कर रहा है अमेरिका में। आज आदित्य चाहे तो अमेरिका में भोग की बात कर सकता है। 1 घंटा अगर वो धर्म की, अगर वो ये डिस्कशंस कर रहा है, इट इज नथिंग बट ए धर्म। हर आदमी धर्म मीन्स, हर आदमी जरूरी नहीं है कि तलवार लेके श्री राम का कार्य करे। कुछ जटायु भी बनना पड़ेगा आदित्य, कुछ को अगस्त्य भी बनना पड़ेगा, कुछ कुछ को को अगस्त शरभंग, बनना पड़ेगा।
कुछ को सीता बनना, माता सीता बनना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ को भाई लक्ष्मण बनना पड़ेगा। करेक्ट। आदित्य एक अपना रोल अदा कर रहा है। इस उम्र में आपको वहां पर ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Right. मुझे यहाँ पर 7 साल हो गए, 8 साल। आई स्टिल फील कि मैं वेदों के मामले में जीरो हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। तो मैं भी धर्म की गिलहरी कार्य कर रहा हूँ। मैं जो राम सेतु के निर्माण में जो गिलहरी का योगदान है, वो मैं गिलहरी का योगदान कर रहा हूँ। ऐसी ना जाने कितनी गिलहरियां हैं, ऐसे ना जाने कितने हनुमान हैं जो आज भी आपको काशी में मिल जाएंगे, बहुत आपको इलाहाबाद में आपको प्रयागराज में मिल जाएंगे, आपको मथुरा की गलियों में मिल जाएंगे, आपको हिमालय के गुफाओं में मिल जाएंगे। मुझे सिंधु की नदी के किनारे कोई ना कोई सुपर पावर मिली होगी ना, जिसने मेरा चेंज कर दिया पूरा के पूरी थॉट प्रोसेस, बिल्कुल। which I cannot describe with the words. I was a very famous novelist. Famous, I am just saying, because my so many books were published by many big publishing house and many editions were there. मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा, बट बंगाली में, तमिल में, इंग्लिश में, पंजाबी में, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होते थे मेरे नॉवेल्स का। Why I switched over to this? तो कुछ ना कुछ उस सिंधु की नदी के किनारे हुआ होगा ना, कि धर्म की स्थापना करने के लिए मनोज सिंह तुमको ये कार्य करना है। So I came to here. I'm doing this job. So आदित्य भाई, धर्म की स्थापना किसी एक पर्टिकुलर तरह से नहीं होती है। हम अपने श्री राम का इंतजार कर रहे हैं, बट हो सकता है आदित्य भाई कि वो श्री राम अपने अंश में हम सबके बीच में किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। सनातन धर्म की पॉपुलैरिटी हमेशा बढ़ती है, आज भी बढ़ रही है। और अगर हम देखेंगे नए नए लोग, जैसे अमेरिका में मैं बोलता हूँ 50 मिलियन अमेरिकन ऐसे होंगे जिनको योग में पूर्ण विश्वास है। उन्होंने मेडिकल बेनिफिट्स लिए हैं योग से, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन 50 मिलियन में से मे बी 8 से 10 मिलियन अमेरिकन, ये नॉन इंडियन अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, वो लोग फिलॉसफी में जाते हैं। और वही प्रकार के लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पर भी आते हैं। साउथ अमेरिका में भी है, बढ़ रहा है। जैसे हमारे चैनल पे कई बार अतुल आनंद स्वामी आए हैं, जो कि भारत में उनका जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म हुआ चिले में। और अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया में 45 से ज्यादा कृष्ण के मंदिर चलाते हैं। और मैंने अपनी लास्ट पुस्तक में प्रूव किया कि सुग्रीव ने उदयगिरी पर्वत जहां पे बोलता है, वो साउथ अमेरिका के माउंटेन्स है, वो उसको बिल्कुल ईस्टर्न डायरेक्शन की बाउंड्री बोलते हैं। तो जब जापान में जब सूरज उगता है तो साउथ ईस्ट से उगता है, वो नॉर्थ ईस्ट से नहीं उगता। तो जब जापान के, जब हम बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो वहां पे कभी आप गए, मैं वहां पे 1 साल रहा हूँ। तो जब मैं देखता था सूर्य वहां से माउंट फूजी से, तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, तो मेरे हमेशा मन में प्रश्न उठता था ये साउथ ईस्ट से कैसे उग रहा है। तो जब मैंने वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव की ट्रेवल्स पढ़ी, कि सुग्रीव, तो उसमें बड़ा खास वर्णन है उदयगिरी पर्वत, और उस पर एक कैंडल बेरा माउंटेन पे एक चिन्ह है, यज्ञ वेदिका, और उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। और मैंने अपनी लास्ट पुस्तक में उसके पिक्चर्स भी डाले, एग्जैक्टली सेम श्लोका जो लिखा है उसका एग्जैक्टली वो माउंटेन पे चिन्ह है, जो करोड़ों साल पुराना है। नाउ ये सनातन धर्म की रीच है। तो अगर कोई मुझे बोलता है व्यक्ति कि सनातन धर्म कहाँ तक है, तो ये तो वाल्मीकि के पेजों, जो वाल्मीकि रामायण के पेज, वाल्मीकि एक छोटी, रामायण एक छोटी पुस्तक है एज कम्पेयर टू महाभारत, एज कम्पेयर टू वेद, एक छोटी पुस्तक मानी गई है वाल्मीकि रामायण, संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तो ये ग्लोबल रीच है। और बट आज की जब मैं मनोदशा देखता हूँ भारत के लोगों पे, और अभी हम थोड़ा बैक वापस आ रहे हैं, तो वहां पे ऐसा प्रश्न लोग पूछते हैं, बहुत खतरे में है, बहुत क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन रक्षा करने का दायित्व किसका है? दायित्व तो हमारा ही है। चाहे हम, तो यहाँ पे हिंसा और अहिंसा पे और उसका सनातन धर्म से जो रिलेशनशिप है, उस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? आदित्य भाई देखिए, ये एक बात तो सही है। मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके उभरे हैं, तो मैं 3-4 पॉइंट्स एक साथ, आपकी विद्वता के साथ आनंद ये आता है कि आपके हर प्रश्न में बहुत वैरायटीज हो जाती हैं, तो उसमें आनंद भी आता है और उसको मैं खुद भी ग्रास्प करता हूँ, बहुत सारी चीजें वो करता हूँ।
मैं 3-4 पॉइंट इसमें ऐड करूंगा जिसमें आपने 3-4 पॉइंट उठाए हैं। समस्या तो है आदित्य भाई, अगर हम समस्या से आंख बंद कर लेंगे ये भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। समस्या तो है और समस्या बहुत भीषण है, ये भी समझना। एंड थर्डली, समस्या हमारे अंदर भी है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, हम अगर उस तरह की चीजों पे बात करेंगे बहुत डिटेल में तो इट विल बिकम मोर और पॉलिटिकल, जो हमारा सब्जेक्ट वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है और हम उस तरफ जाना भी नहीं चाहते क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि, हम ऋषि के का कार्य कर रहे हैं ना, हम ऋषि नहीं है बट कार्य तो हम वही कर रहे हैं ना। Correct. अगर हम इन सब चीजों से आंख बंद कर लें वो भी उचित नहीं होगा। Right. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आदित्य भाई, कि जब भी कोई ऋषि मुनि मिलते थे आदित्य भाई श्री राम से या श्री राम भरत से मिलते थे, वो सब कुछ पूछते थे कि नहीं पूछते थे कि आपके राज्य में कैसा है, आपके शत्रु का क्या हालत है, आपके मित्रों का क्या हाल है, आपके राज्य में सब सुख चैन है कि नहीं है, आपके सारे चारों वर्ण सुख हैं कि नहीं, सब अपना धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर। हम ये पूछते थे कि नहीं। आज भी जब हम सब एक दूसरे से बुजुर्ग लोग मिलते हैं तो हम पूछते हैं ना, आपके घर परिवार में सब ठीक है कि नहीं ठीक है, आपका कैसा चल रहा है। ये क्या है? ये एक तरह से हम एक दूसरे के बारे में जानते भी और एक तरह से हम बताते भी। अगर हम इस बात को नहीं जानेंगे कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है, तो वो आंख बंद करने वाली है। तो समस्या तो है, उसका समाधान क्या है? उसके लिए हमें कई तरीके के एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। और आपको शस्त्र और शास्त्र के बिना, मैं उसको हिंसा शब्द नहीं कहूंगा, हिंसा और अहिंसा दोनों ही एक गलत टर्मिनोलॉजी है। अहिंसा भी बिल्कुल गलत थ्योरी है और हिंसा भी बिल्कुल गलत थ्योरी है। मैं तो ना अहिंसा पर विश्वास करता हूं ना हिंसा पर विश्वास करता हूं। अगर मैं इस तरीके से आदित्य भाई कहूं, हिंसा इज नॉट a right thing and ahimsa is also not a right thing. So what is the right thing? Right thing is शस्त्र एंड शास्त्र, दोनों का उपयोग समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए करना पड़ता है, करते रहे हैं और करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ा, राम का एग्जाम्पल आता है बार बार, तो राम के पूर्वज थे रघु, रघुकुल जिनके नाम पर चलता है, उनका एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करता हूं मैं आपको यहाँ पे। रघु ने, आप समझ लीजिए कि ईस्टर्न साइड से युद्ध करना प्रारंभ किया, बिहार बंगाल के एरिया से, आसाम से, और फिर वो साउथ पहुंचे, पूरे ईस्टर्न घाट को कैप्चर करते हुए, फिर साउथ से पूरा वेस्टर्न घाट को कैप्चर करते हुए गुजरात होते हुए ईरान अफगानिस्तान की पूरा बेल्ट, गंधर्व और ऊपर का पूरा बेल्ट को आनंद करते हुए हिमालय, हिमालय से आते हुए पूरा अयोध्या वापस आए। इसका मतलब पूरी पृथ्वी उस युग में, जो आपने सुग्रीव का एग्जाम्पल दिया, उस युग की जितने भी राजा थे, जो जो जनपद थे, सब पर अपना प्रभुत्व जमाते हुए वापस आए। और आदित्य भाई वापस आकर क्या किया उन्होंने? ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। पता आपको आदित्य भाई क्या किया उन्होंने? उन्होंने सारा राजपाट जो जीता था वो आकर सब कुछ दान कर दिया, त्याग कर दिया। वो जो उन्होंने जीता था वो शस्त्र था, धर्म की स्थापना थी, पूरे विश्व में शांति की स्थापना थी। लेकिन लौट कर आकर अगर वो उसी का भोग करने लगते तो एक दूसरी तरह की व्यवस्था हो जाती, जिसे समझना हम बड़ा मुश्किल काम है। सब कुछ त्याग दिया, वो शास्त्र था। यह ब्यूटी है सनातन की, ये ब्यूटी है राम के वंश की। तो आप मुझे ऐसा एग्जाम्पल एक भी बता दीजिए जहां पे राजा ने सारी दुनिया को जीतने के बाद सब कुछ त्याग दिया हो। यह समस्या आज अमेरिका भी भोग रहा है, यही समस्या दूसरे विश्व पावर भी भोग रहे हैं, कि आप जब तक संतुलन नहीं बनाओगे तो वो आपका अधर्म आपको कहीं ना कहीं आपका नाश कर देगा। तो समस्या तो है कि हम ना तो शास्त्र पूरी तरह से बात कर पा रहे हैं ना शस्त्र की पूरी तरह से बात कर पा रहे, लेकिन कम से कम हम हिंसा और अहिंसा के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हैं ना, वो एक पॉइंट। लेकिन एक कल्चरल एस्पेक्ट पे मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई। आपने वेस्टर्न की बात की और हमारे ईस्टर्न के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा आ जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड को लेकर। एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करता हूँ, ये भी एक एग्जाम्पल कोट करके मैं आपको, हमारे जो सनातनी भाई हैं उनके मन में जो एक कॉम्प्लेक्स उसको
अपग्रेड करना चाहता हूं मैं। हमारे यहाँ छठ पूजा होती है, हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, नदी में खड़े होकर जल चढ़ाते हैं। सिंपल मतलब हम सूर्य के कांटेक्ट में आते हैं, हम एक तरह से सूर्य से एनर्जी ले रहे होते हैं, या आप जो भी कहिए। हम वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करता है, वो सन बाथ लेता है। अरे भाई हमारे यहाँ के लोग तो सन बाथ हजारों साल से ले रहे हैं। आपके सन बाथ से हमारा सन बाथ बेटर है। वो क्यों? आपके सन बाथ में आपका सिर्फ बॉडी इन्वॉल्व है, हमारे सन बाथ में हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, हमारा दिल भी, हमारा मन भी, हमारे विचार भी, हमारा चेतना भी, हमारी बौद्धिकता भी, हमारे विचार भी, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमारा जो सन बाथ है वो ज्यादा अपग्रेडेड सन बाथ है। We take more energy from sun because our body is only involved. So who is more intelligent? Who is more relevant? Who is more superior? Sanatani. My family who is living in Bihar and doing Surya Puja, he is more advanced than the family living in California and taking a sun bath. So why we feel like that? No, it's not like that. Very simple. So Adit bhai, what was your next question? तो ये जो अधर्म पे जो हम लोग आपने बड़ा, I think I picked up 2 points. एक्चुअली मैं अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर I नहीं picked करता up 2 points. One was related to Hinsa. एंड अहिंसा। आपके उस पॉइंट में मैंने 2, एक तो अहिंसा वाला और एक कल्चर वाला, करेक्ट। दोनों पॉइंट को मैंने एग्जांपल कोट करके बताने की कोशिश की, रघु के द्वारा भी। और हिंसा अहिंसा मैं तो बताऊं आदित्य भाई, मेरे को तो अहिंसा पर तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन हिंसा पर भी बिलीव नहीं। राम ने कहीं भी हिंसा नहीं की है, लेकिन राम अहिंसक भी नहीं है। प्लीज, जो ये अहिंसा थ्योरी वाले लोग हैं ना, वो माफ करें भैया, अहिंसा से दुनिया नहीं चलती। अहिंसा कर रहे होते तो रावण अयोध्या में आकर कब्जा कर चुका होता। बिल्कुल। और अयोध्या का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर वर्णन है। अयोध्या हर तरफ से सुरक्षित नगरी है, हर जगह महायोद्धा है, और हर जगह वहां पे अहिंसा में, अयोध्या के हर, कि जो युद्ध में जीता ना जा सके। हाँ, युद्ध में जीता ना जा सके, हर जगह योद्धा है, महारथी है, अतिरथी है पूरे अयोध्या में। तो एक शक्तिशाली देश ही अपने अपने नागरिकों की रक्षा कर सकता है। और ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि राम राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहां पे जगह जगह शत्रुघ्न जाते थे युद्ध करने के लिए, जगह जगह भरत जाते थे युद्ध करने के लिए। भगवान राम ने जो बाद में राज्य किया है, निरंतर युद्ध चलते रहे हैं वहां पर। तो अनेक प्रकार के अधर्मों का नाश करने में ही धर्म स्थापित होता है। और जहां भी अधर्म को टॉलरेट किया जाता है वहां पे धर्म का नाश हो जाता है। इसके विषय में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, मतलब आपको अधर्म का नाश अगर नहीं करेंगे आप, तो अधर्म आपका नाश कर देगा। लोग तो जनरली ये वैदिक थ्योरी बताई जाती है ना कि धर्म के आप अड़े रहे तो आपके साथ आप धर्म रक्षा करता है। ये एक जनरल थ्योरी है, वैदिक थ्योरी, धर्म रक्षति रक्षता वाली। बट मेरा तो उसके आगे का पॉइंट है कि अगर आपने प्रैक्टिकली अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का विनाश नहीं किया, तो अधर्म आपका विनाश कर देगा। बहुत सिंपल थ्योरी प्रकृति की, अगर आप नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा। अगर राम ने रावण को नहीं मारा होता तो रावण राम का समाप्ति कर देते। बहुत सिंपल है इसमें आदित्य भाई, आपको नष्ट करना ही पड़ेगा, दुश्मन को आप नहीं छोड़ सकते। आप मुझे बताइए कि कहां पर श्री राम ने जहां पर आवश्यकता है उसको छोड़कर कहां पे क्षमा वाली बात की है? अब एक एग्जांपल कोट कर दीजिए। कहीं पर भी नहीं। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करना ही पड़ेगा, चाहे वो बाली के रूप में हो, चाहे वो खरदूषण के रूप में हो, चाहे वो ताड़िका के रूप में हो, चाहे शूर्पणखा के रूप में हो, चाहे रावण के रूप में हो। ये सब अधर्म के डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रतीक हैं। उन्होंने क्षमा किसको किया है? श्री राम ने क्षमा नहीं किया,
विभीषण को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो अधर्मी नहीं है। सुग्रीव को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो अधर्मी नहीं है। अन्यथा मुझे बताइए किस अधर्मी को उन्होंने स्वीकार किया? बिल्कुल भी नहीं, एक भी एग्जाम्पल नहीं है किसी भी अधर्मी को। वो कौन था वो मरीच, मरीच को जब उन्होंने ताटका वाले समय में जो उनको मारा नहीं था, छोड़ दिया था, मतलब बहुत दूर फेंक दिया था, तो मारना पड़ा ना उनको मृग मरीचिका के समय में। जो मृग मरीचिका आपका कंसेप्ट आता है शूर्पणखा के समय में या सीता हरण के समय में, उसको उन्होंने एक एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मरीच को सिर्फ उन्होंने मारा नहीं, छोड़ा है पहली बार में, वो भी ताटका के समय में। अन्यथा श्री राम ने किसी भी अधर्मी को कहीं भी नहीं छोड़ा है। आप मुझे बता दीजिए, अब मुझे मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मरीज को 2 बार छोड़ा उन्होंने। एक बार तो अच्छा, मार के 100 योजन दूर समुद्र में भेजा, फेंका। हाँ, अब दूसरी बार वो वापस परेशान करने आया, जनस्थान में वापस मारा। उसके बाद वो तो खत्म कर दिया नहीं, केरल में वो। फिर आया। केरल में अच्छा, फिर वो आके वो जहाँ पे गरुड़ का जो एक स्थान पेड़ है, मैंने वो अपनी पुस्तक में लिखा है कौन सा पेड़ है वो। अच्छा, वहां पे वो रह के आश्रम में तपस्या कर रहा था। वहां पे आके रावण ने उसको मनाया ताकि वो अटैक करे वापस। अब इस हाँ, तीसरी बार जब मिला तब मार दिया भगवान राम वो ने। मृग 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 बन के जो आता है, वही वही मतलब कहने का हाँ, मतलब ये है कि अल्टीमेटली उन्होंने सेकंड बार में उसको थर्ड बार में उसको मार दिया। मार दिया। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये कि और कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं दिखाई देता जहां उन्होंने किसी को क्षमा दान दिया हो। नहीं, सनातन धर्म में क्षमा का प्रावधान तभी है जब आप धर्म पे सरेंडर करें, नहीं तो नहीं है। एग्जैक्टली, वेरी राइट। तो ये बात हम लोग को भुला दिया गया है प्रचार कर करके। हमको बोला गया है कि पूरी तरह निहत्ता कर दिया है हम लोगों को, निहत्ता मन से। एग्जैक्टली, ये स्ट्रेटेजिकल है आदित्य, स्ट्रेटेजी। ये आप समझ लीजिए कि ये स्ट्रेटेजिकली षड्यंत्र है ये। मैं तो इसको कहता हूँ ये बहुत लंबी कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन आदित्य भाई मुझे पता है यहाँ पर एक बात, जब मैं बहुत गहन चिंतन में पढ़ता हूँ, जिन लोगों ने हमारे साथ ये कॉन्स्पिरेसी किया है, जिस किसी ने भी, आप उनकी हालत खुद देख लीजिए। जस्ट सी देम वेयर दे आर एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देम। वेरी सिंपल। अगर ये सोचते हैं वो कि वो इस चीज से बच रहे हैं, नहीं। अधर्म का साथ आप जब भी देंगे तो आपका नाश तो तय है, माध्यम कोई और बनेगा। लेकिन क्योंकि अधर्म के रास्ते पे चलने पर आप कभी, क्योंकि आप प्रकृति विरुद्ध हो जाते हो। मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा चिंतन अब कहता है कि कोई भी अधर्मी इसलिए सरवाइव नहीं कर पाता क्योंकि वो प्रकृति विरुद्ध हो जाता है। क्योंकि प्रकृति का भी अपना एक धर्म है। प्रकृति कभी भी अधर्म नहीं करती। अगर प्रकृति अधर्म कर जाए तो पूरा भूचाल आ जाता है, खत्म हो जाता है सिस्टम पूरा। उसको फिर हम प्रलय कहते हैं। जब लय में नहीं होता है चीज तो प्रलय कह देते हैं उसको, फिर सिस्टम खत्म हो जाता है ना। प्रकृति भी क्या कहती है, शिव क्या कहते हैं कि भाई अब हो गया व्यवस्था, इसको खत्म करो। अब रात्रि रात्रि आ गई, ब्रह्मा की रात्रि आ गई ना। रात्रि मीन्स क्या? मीन्स डार्क, नथिंग पॉजिटिव। इसको इस तरीके से ले सकते हो, नथिंग पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज एवरीवेयर डार्क। तो आप जो प्रलय को एक तरह से विनाश का काल भी ले सकते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। एक एक स्पिरिचुअल में तो उसका क्या डिस्कशन। दूसरा है, मैं इसको एक सिंबॉलिक वे में दूसरी तरीके से ले रहा हूं। तो अधर्म में आप जब भी रहोगे तो आपका नाश तय है। अच्छा, सनातन धर्म का एक विपरीत शब्द ही है, वो है कैतव धर्म। ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है। तो एक सनातन धर्म है और कैतव धर्म है। कैतव धर्म मतलब आर्टिफिशियल, मनगढ़ंत। हम्म, और जो कि आजकल के बहुत सारे रिलीजन है, रिलीजन को हम कैतव धर्म भी बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल। वैदिक शास्त्र के विपरीत है। अ, हाँ, तो ये जो कैतव धर्म है, जो रावण फॉलो कर रहा था, कैतव धर्म दूसरों की पत्नियां किडनैप करना, उनके साथ शोषण करना, फिर बच्चों का शोषण करना। शोषण बच्चों का अनेक प्रकार से होता है, उनको गलत मार्गदर्शन देना भी शोषण है। बिल्कुल। तो तो ये भी अधर्म है। तो अभी जितने भी हम सनातन धर्म के लोग हैं, दुनिया भर में कैतव धर्म को देख रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए आदित्य भाई, एक बात तो पक्की है कि आपको अपने अपने लेवल पर बोलना पड़ेगा, अपने अपने लेवल पर गिलहरी का योगदान देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। आप मूक दर्शक बनकर नहीं जी नहीं सकते। रह सकते, नहीं रह सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बच जाओगे तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख है। मैं तो कई विद्वानों के बीच में मैं एक बात उनसे कहता हूं
एक दूसरे रूप में मैं ले जाता हूं कि अगर तुम्हें इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें जो डेवलप हो रही हैं अगर दिखाई नहीं देती, तो तुम ज्ञानी नहीं, सबसे बड़े मूर्ख हो। जो चीज साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर उसको भी आप अनजान बन जा रहे हो, तो आप ज्ञानी कैसे हुए? आप तो ज्ञाता तो हो ही नहीं ना। फिर तो आप मूर्ख हो। फिर तो आप किताब पढ़ लेने से, एग्जाम पास कर लेने से, बीए में एक डिग्री ले लेने से ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी तो वो है जो जीवन का ज्ञान लेता है। तो अगर आपने जीवन का ज्ञान नहीं लिया, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप आंखें बंद किए हुए हैं, तो आप तो मूर्ख हैं। तो आदित्य भाई, आपको रेजिस्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप रोड पर चल रहे हैं और कोई आदमी अगर रोड में गलत दिशा से आ रहा है, आप सोच रहे हो मेरा काम नहीं है ये, तो आप गलत हैं। वो आपके साथ एक्सीडेंट कर जाएगा, आपको रोकना चाहिए उसे। चलिए दूसरा एक एग्जांपल बहुत छोटा सा लेते हैं कि मास्क, आज की डेट में इंडिया में सबको मास्क लगाना है कोरोना के काल में। आप कह रहे हैं यार सामने वाले मास्क नहीं लगाया, मैंने क्या करना है? आपको टोकना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप हिम, यू हैव टू टेल हिम, यू हैव टू रिक्वेस्ट हिम, यू हैव टू इंसिस्ट हिम, वॉट एवर वे यू, बट यू हैव टू स्पीक इट आउट। ये छोटे से दो एग्जाम्पल के रूप में अगर आप आंख बंद कर लोगे, तो सामने वाला आदमी कोरोना ग्रस्त है तो आपको कोरोना दे देगा। अगर आप रॉन्ग साइड से आने वाले आदमी को नहीं टोकेंगे, हर जगह तो पुलिस खड़ी नहीं होगी, तो आपको गाड़ी में एक दिन मार देगा। आपको रोकना पड़ेगा। ये धर्म की और अधर्म की बड़ी बड़ी व्याख्या में ना जाते, हम छोटी छोटी व्याख्या में ही जाए। समस्या यही हो रही है आदित्य भाई कि आज की डेट का हिंदुत्व जो है, जो हिंदू है, जो आज के युग का हिंदू है, वो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से कोई भी अपना योगदान नहीं देना चाहता, निष्क्रिय बन गया है। वो सोचता है कि अगर मैं सिर्फ मंदिर चला गया या भगवान राम की बात कर लिया तो मैंने ये धर्म का योगदान कर दिया। नहीं, राम के द्वारा आपके राम के चरित्र को समझकर उस चरित्र को अपने जीवन में उतारना भी है। श्री कृष्ण की गीता पढ़ लेने से अगर आपने सिर्फ उसको याद कर लिया और कुछ समझा नहीं, तो व्यर्थ है। वैदिक, इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको इस तरीके से आदित्य भाई और कोट करना चाहूंगा कि वैदिक ऋषियों ने जब इस बात को रियलाइज किया कि हमने इतना सारा ज्ञान तो बना दिया है, बट क्या ये ज्ञान, उसकी प्रैक्टिकलिटी और उसके यूज आम जन के बीच में हो पा रहा है, या हो पाएगा, या कैसे होगा? उन्होंने उसका बहुत सुंदर इंतजाम किया। उन्होंने इस पूरे ज्ञान को हमारी संस्कृति के अंदर इस तरह से पिरो दिया कि हमें पता ही नहीं चला कि हम ज्ञान के भागीदार हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल आपने लिए। उन्होंने राम का कथा जो है पूरा वैदिक ज्ञान एक जीवन यात्रा के रूप में कन्वर्टेड है। अगर आप राम के जीवन को ध्यान से देखें तो वैदिक ज्ञान है पूरा के पूरा। और ब्रह्मा ने ये बात कही भी है वाल्मीकि जी से कि आपको ये राम कथा लिखनी है। उन्होंने पूछा भी जब कि मुझे आदर्श कौन सा प्रस्तुत करना है, तो राम की कथा। वो राम कथा पढ़ने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे राम कथा पढ़ने का तात्पर्य अखंड रामायण का कथा ज्ञान नहीं है। उस कथा के माध्यम से जो आपको सूचना मिल रही है, जो संदेश मिल रहा है, जो प्रतीक मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, जो आपको भाव मिल रहे हैं, जो धर्म की स्थापना का संदेश, वो करना है, क्रियान्वयन करना है उसका। यही चूक हो रही है इस युग में। अब उन्होंने जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ जिसका वर्णन मैंने अपने सनातन धर्म में किया हुआ है, कि उन्होंने जैसे सब घरों में कह दिया था आपको तुलसी की पूजा करनी है। अब आदमी तुलसी की पूजा बरसों से कर रहा है, उसे ये नहीं बताया गया कि तुलसी के फायदे क्या है। तुलसी के फायदे क्या है? तुलसी एक एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, सबसे बेस्ट अतुलनीय औषधि है। उसे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं थी। उसने कहा कि इसको हर घर में होना चाहिए, और हर व्यक्ति सनातन का उसकी पूजा कर रहा था। उस तुलसी पूजन के द्वारा 95% लोग, 99% लोग निरोग रहते थे। ये ज्ञान था तुलसी का। तो जब आपका शरीर निरोग रहेगा तो आप शक्तिशाली रहेंगे। जब आप शक्तिशाली रहेंगे तो आप अपना जीवन का निर्वाह, अपने समाज का निर्वाह, अपने राष्ट्र का निर्वाह अच्छे से कर पाएंगे। अब उस तुलसी विवाह को आपने आपने हर घरों से हटा दिया। अब तो प्लास्टिक के वो आ गए, प्लास्टिक के पौधे घर घर में लग गए।
हम छोटे छोटे तुलसी के पौधे फ्लैटों में भी लगा सकते हैं, नहीं लगाते अब हम तो वो प्लास्टिक वाले उसकी पूजा करने लगे, हम उसके फूल लगा के नकली फूल करके काम करने लगे। तो हमने डिटोरिएशन षड्यंत्र पूर्वक उनके हम शिकार बने और उसको समझ नहीं पाए। तो हर चीज का विरोध करना पड़ेगा, हर चीज को बोलना पड़ेगा, जहां मौका मिले वहां बोलना पड़ेगा, जिस स्तर का है उस स्तर का बोलना पड़ेगा, जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है करना पड़ेगा। हर एक की अपनी अपनी क्षमता है। आपके वर्ण आश्रम में हर एक वर्ण का अपनी अपनी ड्यूटी थी। तो जो जिस वर्ण के लायक है, जो जिस वर्ण के योग्य है, जो जिस आयु में, जिस आश्रम अवस्था में है, वो उस, अब जैसे कोई ब्रह्मचर्य अवस्था में तो उसका अलग योगदान होगा, जो ग्रस्त में उसका अलग योगदान होगा, जो सन्यासी होगा उसका अलग योगदान होगा। उसको अपने अपने हिसाब से योगदान तो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई भी सन्यासी है, वो भी आश्रम सन्यासी का, उसमें भी श्रम है। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि पेड़ के नीचे बैठ जाके धुनी लगा लेना है, ये भी गलत कंसेप्ट है। सन्यासी को अपने रूप में अपना योगदान करना है। तो हमारे यहाँ तो श्रम है ही, हर आश्रम में श्रम है। तो हर एक को योगदान देना है आदित्य भाई, हर युग में अंतिम दिन तक, जीवन के अंतिम दिन तक योगदान देना है, तभी समाज आपका उच्च बन सकता है। ये आदित्य, बहुत मेरा अच्छा। ख्याल है शायद मैं शायद उसको एलोबरेट जरूर कर गया, बट जितना मैं प्रयास करके उसको बता पाया। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, जहाँ अगर हम अधर्म के विरुद्ध, जैसे कुछ लोग वेट करते हैं सनातन धर्म की, जैसे कुछ मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं कि मंदिर में मूर्ति रखी हुई है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इसका अगर वो रक्षा अपनी नहीं कर सकती तो हम रक्षा कैसे कर सकते हैं अपनी, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा मूर्खतापूर्वक पॉइंट है, क्योंकि वो जो मूर्ति रखी है मंदिर में वो कुतर्क है ये, आपके, इसको कुतर्क कहते, इसको कुतर्क कहते हैं। कुतर्क कहते हैं, ये वितर्क है ये। तो इस वितर्क, ये वितर्क इसलिए है कि वो मूर्ति आपकी सेवा के लिए रखी गई है, उसकी रक्षा करने का दायित्व आपका है, उसका नहीं है। वो तो भगवान के प्रतीक है वो। लेकिन ये, इसको इस प्रकार के मूर्खतापूर्वक बातों करने से सनातन धर्म का नाश होता है। और ये लोग वितर्क बोल रहे हैं, ये कैतव धर्मी है, ये सनातन धर्मी नहीं है, कैतव धर्मी है। तो इस तरह के जो कैतव धर्मी है ये समाज में फैल गए हैं। इनमें से कुछ लोग अपोलोजिस्ट हैं और कुछ लोग मिथोलॉजिस्ट हैं, बड़ा गर्व से बोलते हैं। और लेकिन लेकिन जब हम और आप जब ये बात कर रहे हैं कैतव धर्म वर्सेस सनातन धर्म, तो ये जो वीकनेस है, आइडियोलॉजिकल वीकनेस है, ये सब मैक्स मुलर, मकॉले और ये जो फॉरेन के जो, जिन्होंने भारतीय शास्त्रों को कन्वर्ट किया और भारत में विभाजन भी किया सनातन धर्मी फॉलोअर्स में, जैसे कोई बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं वैष्णवाइट वर्सेस शैवाइट। हमारे शास्त्र में तो कहीं है नहीं ऐसा। शास्त्र में तो समन्वय है हर जगह। शिव और राम दोनों में अगर आप देखेंगे तो बड़ा यूनिक कोऑपरेशन है, हर जगह प्रेम का संबंध है। तो उसमें जैसे कभी भगवान स्वयं बोलते हैं भक्त्या माम पूज्या विधिका, मैं तो अपने भक्त की पूजा करता हूँ। तो अगर आप भगवान के भक्त बन जाएंगे तो भगवान आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और पूजा करते हैं। भगवान बोलते भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ये तम उत्तमम, सारे सीक्रेट भी आपको बता देंगे। लेकिन ये जो कंपटीशन की जो भाव है सनातन धर्म में, जिस जो मूर्खता पूर्वक, इसको कैतव धर्म में बोला, इसलिए मैंने कैतव धर्म का शब्द यूज किया। इसके इनके विषय में आप थोड़ा सा क्या बोलेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कशन समाप्त करें, क्योंकि हम दोनों घंटों तक कर सकते हैं बात, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। आदित्य भाई, मैं आपको आपके आपके अचानक आपको देखने में मुझे एक पॉइंट याद आया। आपने धर्म के बाद में अपने कंट्रीब्यूशन की बात की ना, और माइथोलॉजी। आदित्य सत्संगी जो है माइथोलॉजी को डिबंक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज धर्म की स्थापना। जो माइथोलॉजी अधर्म फैला रहा है, अगर हर आदमी उसमें ही चलते रहते तो माइथोलॉजी चलती रहती ना। मेरा भी एक हॉट टॉपिक रहा है बचपन, हमेशा से, जब से मैं वैदिक स्टोरी, मुझे माइथोलॉजी शब्द से ही घृणा है। आप याद कीजिए, जब हम पहली बार डिस्कशंस में आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत आनंद इसलिए आया कि मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि माइथोलॉजी मतलब मिथ मीन्स मिथ्या। आप क्या कहना चाहते हो कि आप सब मिथ्यावादी हो, आप सब काल्पनिक हो, हम सब पूरी दुनिया मिथ्या है? ये फिर सारी दुनिया मिथ्या है तो भाई हम और आप क्यों बैठे हुए, समय क्यों खराब कर रहे हो? मत करो समय खराब। तो आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हो और इतना प्रयासरत हो, उसमें आपने तन मन धन
हर तरह से उस पे लग गए हो। आप मुझे बताइए, क्या ये धर्म की स्थापना के लिए युद्ध नहीं है? युद्ध तलवार से ही नहीं लड़े जाते आदित्य भाई, वैचारिक। हर तरह से। मैंने कहा ना आपको, वो उस समय मैं एग्जाम्पल कोड नहीं कर पा रहा था पिछले क्वेश्चन में आपके, अभी मैं उसका बड़ा लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं। सेकंड पॉइंट, आपने मैक्स मुलर की बात की, आपने, हम आर्यपुत्र के ऊपर ऑलरेडी बात 2 चैप्टर पे कर चुके हैं। मुझे आप बताइए, जब मुझे सनातन धर्म, तो मैंने एक ब्रॉड पुस्तक लिखी है नॉर्मल, आर्यपुत्र लिखने के पीछे मेरा मकसद ही यही था कि पूरी की पूरी आर्यन की जो थ्योरीज हैं, वो पूरी आर्यन थ्योरीज को आप देखिए ना, मैंने कम से कम 2000 प्रूफ के साथ वैदिक, मैं तो एकेडमिक यहां बात इसलिए नहीं करता क्योंकि आई वांट टू मेक ए डिस्कशन ए लिटिल बिट मोर इजी। पर जो मैंने किताब ये लिखी है आदित्य, जिसके बारे में आप जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पूरी की पूरी वैदिक रेफरेंस के साथ है, बकायदा एवरी स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय ऋग्वेदास। व्हाई आई स्पेंट माय 5 years to write this book? Why? Just to debunk the Max Muller, just to debunk the all entire group of that people, चाहे वो मैकॉले हो, चाहे वो जॉन मिल हो, anybody of that group, they are a very bunch of people. उसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है, उसमें जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, उसमें ब्रिटिश पीरियड की बता रहा हूं मैं आप, उसमें बकायदा बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व है, उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी इन्वॉल्व है, उसमें रिलीजन जो आपके मिशनरीज वो इन्वॉल्व है। सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर ये स्टैब्लिश किया था अधर्म को। तो उस अधर्म को नाश करने के लिए मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया। तो हर आदमी, उसके लिए आपको युद्ध का मतलब, तो आज की डेट में युद्ध जो मतलब थोड़े कि हर चीज जाके, युद्ध मीन्स अपने अपने लेवल पर उस चीजों को काउंटर करना। तो ये बात तो पक्की है आदित्य भाई की कोशिश तो करनी पड़ेगी, और जो हमारे विचारों के बीच में हमारे अंदर जो कमजोरियां आ चुकी हैं, चाहे वो वैचारिक हो, ये बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि सारे के मूल में विचार होते हैं। अगर आपके विचार कमजोर कर दिए जाएं तो शरीर और समाज दोनों कमजोर हो जाता है, शरीर भी और समाज भी, शरीर व्यक्तिगत रूप से, समाज सामूहिक रूप से। इसीलिए आप ध्यान दीजिए आदित्य भाई कि हमारे विचारों पर अटैक हुआ है बहुत सिस्टमैटिकली पिछले 200 सालों में। ये अहिंसा शब्द मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन दिस अहिंसा, आई हैव नॉट सीन एनीवेयर दिस हिंसा एंड अहिंसा टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी एनीवेयर। पूरी प्रकृति के अंदर हिंसा और अहिंसा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। शेर को बकरी खाना है तो खाना है, इट इज इज धर्म, इट इज इज राइट, ना वो हिंसा है ना वो अहिंसा है। ये अहिंसा और हिंसा की थ्योरी पता नहीं कहां से आ गई। अगर एक डकैत मेरे घर में आकर अगर चोरी कर रहा है, या मेरे घर परिवार में किसी की सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या मुझे अहिंसा बन जाना चाहिए? अगर मैं उसको रोकता हूं तो क्या वो हिंसा कहलाएगी? आई थिंक आई डोंट नो वेयर दिस थ्योरी, दिस टाइप ऑफ थ्योरी इज फ्लोटिंग। Is it totally misguided missile? Is a misguided missile? Means you are aiming something and destroying something else. So this entire system of entire theory of the existence will be vanished if you will talk of this hinsa and ahinsa. It's a survival of existence. ये तो आप सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हो, आप एक तरह से पूरी फूड साइकिल को चैलेंज कर रहे हो आप अहिंसा की बात करके। It is something very that has got no base, no sense, no aim. What do you want to say? And because of this theory, आपने एक वर्ड यूज किया partition. Because of this absurd theory, we have gone to that level. And if we will not stop, if we will not stop thinking in this way, again there will be trouble in future. We'll have to stop somewhere. We'll have to resist. We'll have to tell, we'll have to show the face कि भाई दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग। सामने वाला आदमी आपको तलवार मार रहा है और आप कहोगे भैया नहीं तो मैं अहिंसावादी हूं। हाउ कैन यू? इवन हिरन को भी जब शेर मारता है तो हिरन भी स्ट्रगल करता है, जबकि वो फूड साइकिल में है। हम लोग तो शेर हैं, लेकिन अभी लास्ट पॉइंट, मायावी वर्सेस वर्सेस रियलिटी, मतलब वास्तविकता।
अभी जब रावण भगवान के साथ युद्ध कर रहा है तो तरह तरह के मायावी छल यूज करता है। कभी ऐसा लगता है हवा में है, कभी ऐसा लगता है कहीं पे उड़ रहा है, कभी ऐसा लगता है कि पत्थर फेंक रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। य- यही आजकल है नैरेटिव वॉर। नैरेटिव तो यही होते हैं कि ये जो रावण के जो मायावी छद्म जो एफर्ट्स कर रहा है, धार्मिक कर रहा है, वही नैरेटिव वॉर है। मतलब ऐसा बना दिया जाता है कि पूरा आसमान टूट पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा 2 मिनट में, और फिर आप पैनिक में रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे भगवान राम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं बड़ा शांति से, उस समय टॉलरेट कर रहे हैं। मात्रा स्वर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, तो यहाँ पे टॉलरेट कर रहे हैं वो। लेकिन समय का देख रहे, उसको स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पे है, फिर उसकी जड़ पे आक्रमण कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म के विरुद्ध जो मायावी अटैक्स हैं, जो मैक्स मिलर से शुरू हुए और आजकल कोरा और विकिपीडिया में फैल गए हैं, और साथ में ट्विटर पे आ गए हैं, फेसबुक पे आ गए हैं, ये सब माया राक्षसों के टूल्स हैं जिसपे वो सनातन धर्म पे आक्रमण कर रहे हैं। और जो हमारे जो सनातन धर्मी है, कभी कभी माया के प्रभाव को समझ नहीं पाते और गलत जगह पे आधारित आक्रमण करते हैं। इसकी जगह यहाँ पे भगवान राम क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण को बोल रहे हैं थोड़ा शांति से बैठ के देखो, देखो क्या हो रहा है, 2 क्षण के लिए रुको। हनुमान को बोल रहे 2 क्षण के लिए रुको, सुग्रीव को बोल रहे हैं 2 क्षण के लिए रुको। और युधिष्ठिर जब उस प्रकार के मायावी अटैक हो रहे थे, जब कौरव की आर्मी कर रही है, क्योंकि काफी उन्होंने स्ट्रेटेजी यूज की, उस समय युधिष्ठिर बोलते हैं थोड़ा हम लोग विश्राम करते हैं, क्योंकि उस समय हम आक्रमण नहीं कर सकते, और जड़ पे प्रहार करते हैं विद फिजिकल स्ट्रेंथ। उसके बाद हम लोग ये कभी कभी देख नहीं पा रहे हैं, या फिर हम लोग में इतना धैर्य नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या चल रहा है। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते Adit bhai, the beauty in your discussion is that you question and you answer yourself also. Like हैं? मेरा you, एक like you said you मायावी को एक तरह से मैं उसको अपने वर्ड में कहूंगा बहुरूपी आज के युग में। हाँ, आपने एग्जाम्पल कोट तो कर दिया। आपके लिए गूगल और विकिपीडिया इज अनदर नैरेटिव सेटिंग। करेक्ट। It is, you have questioned, you have answered yourself. Only point which you also said कि हम उस नैरेटिव को पढ़ नहीं पा रहे हैं या हम पढ़ना नहीं चाह रहे, या थर्ड लेवल में आपको आदित्य भाई करूं कि हमारी माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करवा दिया गया है कि हम उस पढ़ने लायक नहीं रहे। करेक्ट। आप आदित्य भाई एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, और आप जरूर करते होंगे। आप किसी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे ग्रुप में चुपचाप आनंद लेते हुए पढ़िएगा उनकी बातें। बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स होंगे, बड़े बड़े एमए इंग्लिश ऑनर्स होंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होंगे, और बड़ी बड़ी किताबों को ज्ञान करने वाले भी होंगे। आप उनके डिस्कशंस को चुपचाप, जैसे कि आपने राम को कोट किया ना, आपने जैसे युधिष्ठिर को कोट किया। हम और राम और युधिष्ठिर तो बन नहीं सकते, लेकिन उनके इंस्पिरेशन से हम उसकी सीख ले सकते हैं। हम इनको चुपचाप पढ़ें और फिर आप देखिए कैसे मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। तो ये जो मायावी लोग हैं, अब मैं इसको छोटा सा एग्जांपल इस तरीके से कह सकता हूं, ये जो एनजीओ चल रहे हैं, ये जो नाम बदल के चल रहा है, अभी जैसे कई सारे एग्जांपल्स आते हैं कि पता चला कि वो कोरोना काल में सहायता करने जा रहे हैं और वो कुछ और एम कर रहे हैं। अब इसको क्या कहोगे आप किसी की सेवा करने के नाम पर कुछ और कर रहे हैं, इसको क्या कहोगे आप? नाम आपका शर्मा है लेकिन आप कुछ और हैं, इसको क्या कहोगे आप? वो कहते हैं ना, कई लोगों ने जानबूझकर किसी जगह पर नैरेटिव सेट करने के लिए टीका लगा लिया और क्या कहते हैं ध्वज ले लिया और श्री राम बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, और आप निकले कोई और। आपने भगवा कपड़े पहन लिए और आप कुछ और हैं अंदर से। You will find many people on social media that name is something else and they are something else. You name, there are n number of things. हम उनको वॉच कर रहे हैं और उनको समझ सकते हैं, और कोई भी बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उनका ब्रेन उस तरीके के। सो ये जो नरेटिव बिल्डिंग्स के साथ साथ जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है आदित्य भाई, वो बहुत सिस्टमैटिकली की गई है। उसका एक ही इलाज है। उसका इलाज मेरे हिसाब से आपने स्वयं अपने क्वेश्चन में कह दिया कि आपको चुपचाप पहले देख कर रिएक्ट करना है, और रिएक्ट भी कैसा करना है।
जड़ पर रिएक्ट करना, जो आपने स्वयं फिर कहा तीसरी लाइन में। आप किसी समूह में जाइए जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, जो कैलिफोर्निया से, सैन फ्रांसिस्को से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, डॉक्टर्स हैं, ये है वो है। क्या डॉक्टर्स हैं? रोमन, ये क्या कहते हैं, रोमिला थापर से पढ़कर डॉक्टर्स बन गए हैं, ठीक है ना। वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता। उनसे धीरे से हम पूछ सकते हैं अचानक एक बात कि भाई साहब ईरान को क्या हुआ था? जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड टू ईरान। Let us not go to the old story which you say it's a mythology. At least Iran evolution, Iran history is not mythology. What happened to Iran? अच्छा चलो भाई ईरान को छोड़ दीजिए, what is happening in Britain? What happened to Srinagar? You will not agree, okay? But what happened to Afghanistan? What happened to Misr? So it's a simple thing. What happened in Spain in 13th and 14th century? Let us, मतलब हम तो आपके ना जड़ में, उस जड़ में आपको कहना पड़ेगा कि भाई आप ये मुझे बताइए कि जब जूस के साथ क्रिश्चियनिटी का कन्फ्लिक्ट हो रहा था यरूशलेम में, उसके पास में पढ़ लीजिए आप। चलिए हमें छोड़ दीजिए बाकी बात। तो ये नैरेटिव सेटिंग्स के वॉच करके अगर हम चुप रह जाएंगे आदित्य भाई, तब भी गलत हो जाएगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं जैसे हम और आप हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमें आज की डेट में 100 लोग, 200 लोग, 50 लोग, मैं कह रहा हूं 2 भी सुन रहे हैं, वो 2 के सामने भी हम एक क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं ना कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग। वी आर ट्राइंग टू ओपन देयर आईज, वी आर ट्राइंग टू टेल द ट्रूथ। एटलीस्ट आप हमारी बात नहीं मानते तो आपने एक वर्ड बीच में यूज किया था, स्वाध्याय। अब ये स्वाध्याय वाला पार्ट चल रहा है ना आपका आदित्य भाई, तो हम उनसे कहेंगे कि भाई स्वाध्याय कर लीजिए एक बार, आप एक बार अध्ययन तो कर लीजिए कि क्या हुआ था ईरान में, मिस्र में, जितने मैंने नाम लिए। आप अपने नैरेटिव से ही सोच लीजिएगा, आप पढ़ तो लीजिए एक बार क्या हुआ था। हम कुछ नहीं कह रहे, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि लाहौर में 1945 में क्या था और 2015 में लाहौर में क्या है। कितने साल का गैप है? हार्डली 50-60 ईयर्स में। तो 60 ईयर्स पहले के लाहौर में और 60 ईयर्स, हम ये नहीं कह रहे कि लव और कुश के समय में लाहौर में क्या था, हम ये भी नहीं कह रहे तक्षशिला में क्या था, हम भरत युग और त्रेता युग में जा ही नहीं रहे। हम अगर वो तो आपने भी किया और मैं अगली जो पुस्तक लिख रहा हूं उसमें पूरा त्रेता युग की कथा लिख रहा हूं मैं तो। इट वॉज ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ ए लैंड, वेल डेवलप्ड। विदिशा से लेकर, विदिशा में अगर दूसरे भाई थे तो भरत ने अपने दोनों पुत्रों को इस एरिया में स्टैब्लिश किया था। पूरा के पूरा इतिहास है, हम उस इतिहास में नहीं जाते। हम तो ये कहते कि तुम 100 साल पहले के लाहौर के इतिहास को पढ़ लो। आप नहीं मानते ना कि पाटलिपुत्र में क्या हुआ था, मत मानिए। आप तक्षशिला में नहीं मानते, कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं सिर्फ 1947 से 10 साल पहले लाहौर में क्या था वो पढ़ लीजिए, अगर आप ज्ञानी हैं तो। तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग्स है ना आदित्य भाई, ये नैरेटिव बिल्डिंग्स एक तरह से मृग मरीच, जो मरीच जो है मृग बन के आया था, वो भी नैरेटिव जनरेट करने आया था। और ये एग्जाम्पल कोड एक तरह से कि लक्ष्मण रुक रहे हैं पर श्री राम ने कहा मेरा धर्म है। क्यों धर्म है आगे जाके सोचेंगे हम कि अगर श्री राम ने अगर मृग मरीचिका में फंसकर अगर उसको मान लिया होता तो रावण का नाश नहीं होता। करेक्ट। Ram was knowing everything. Lakshman was very right on his part. Sita Mata was right on her part. Ram was right on his part. But narrative building तो मरीच ने किया ना रावण के कहने पे। रावण ने एक नैरेटिव जनरेट किया कि वो साधु बन के आया। तो हमारे यहाँ साधु के भेष में कई राक्षस घूम रहे हैं। अब ये काम लक्ष्मण, सीता और राम का आज के युग का है कि वो उसको समझें, और अगर नहीं समझ पा रहे तो उसकी ट्रैप में फंसकर उसका नाश करें। राम उसके युग में उसके आके उन्होंने रावण का नाश किया, तो वो नैरेटिव तो उसने भी जनरेट किया था ना, रावण ने भी जी। और ये जितने भी मरीची हैं, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल बोला, रोमिला थापर, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मरीची हैं, जो रावण जो अधर्म का स्रोत है उसके इंस्ट्रक्शन पे, उसके पैसे पे काम करते हैं। Exactly. या तो जान के डर से काम करते हैं या उसके मन पे। तो जितने भी आजकल जो चैनल्स हैं, विकिपीडिया, मैक्स, फेसबुक,
हम लोग भी यूज करते हैं, लेकिन हमको मालूम है हमको भी यूज उन्हीं को करना है कभी कभी, ताकि उन पे हम लोग नहीं, बात कर उनको सकें। यूज करके उनके नैरेटिव को दस करेंगे ना आप। एग्जैक्टली। अगर आप लंका में नहीं जाएंगे तो रावण को कैसे मारेंगे? करेक्ट। करेक्ट। आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर ही तो उनका नाश कर सकते हो ना। राइट राइट। तो हम लोग भी वैसे ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सभी जो माया के जो अटैक्स हो रहे हैं, भारत के मायावी अटैक्स हैं, ये रियल नहीं है, ये सब माइंड्स पे है। रियलिटी में तो लोगों का जीवन चल ही रहा है, लेकिन फिजिकल, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए, मिस्र में क्या हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रिटेन में आज क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है अभी आजकल, आपने सब एग्जांपल्स दिए। लेकिन हम लोग को ये समझना जरूरी है कि ये जो मायावी अटैक्स हैं, इवन तो रियल नहीं है, लेकिन ये रियल बन सकते हैं, वेरी रियल, ऑन द ग्राउंड। तो पहले तो ये लोग मन पे अटैक होता है, जैसे रावण ने किया मरीचि के द्वारा। उसके बाद उसका एक्चुअल प्लान क्या है कि पूरा खत्म करना, आगे जाके खत्म करना, उसका प्लान यही है, अल्टीमेटली जाके राम को डिफीट करना। लेकिन अगर हम लोग अभी जगेंगे नहीं, तो हम लोग सनातन धर्म रहने वाला है, वो कहीं या जाने वाला है, उसकी रक्षा तो विष्णु करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि, विष्णु जब आएंगे तो एक बार में सबको खत्म। वो हमारे और आपके रूप में ही आएंगे, हाँ। वो हमारा ही रूप लेकर आते हैं। कोई पुरुष का रूप लेके ही तो आते हैं ना, कोई रूप में करेक्ट। भी आ सकते हैं। करेक्ट। तो वो तो हनुमान जी, हनुमान जी जब राम के साथ इतनी सारी जो वानर सेना जन्म ली थी, सभी सभी ने जन्म लिया था ना, किसी किसी देवता के माध्यम से। तो करेक्ट। हम सब वानर सेना है, हम सब वानर सेना। तो हमारा इसमें क्या रहेगा कि हम इस यज्ञ में शामिल, मतलब घुसकर हम भी अच्छे मतलब कर्म बंधन से मुक्ति पाए, वहीं पे मोक्ष है। तो वहीं पे सनातन धर्म का ऑब्जेक्टिव भी मीट होता है कि अगर हम इस यज्ञ में जुड़ जाएं और राम के साथ कार्य करें धर्म को बचाने के लिए, तो उसी में हमारा समसिद्धि है, मतलब हमारी सिद्धि है। उस पर क्या बोलेंगे, उस पर हम लोग आदित्य समाप्त करेंगे भाई, discussion। आदित्य भाई, दो पॉइंट इस पर। एक तो आपने बीच में स्टार्टिंग पॉइंट का जो आपका सही भी है कि भारत पर आक्रमण है, मैं उसमें सिर्फ ऐड करूंगा, सिर्फ भारत पर आक्रमण नहीं आदित्य भाई, ये मानवता पर आक्रमण है। बिल्कुल पहली सही। बात तो अमेरिका में बैठा हुआ जो धर्म को मानने वाला, मतलब सनातन को नहीं भी मानता, जो अच्छा पुरुष है, हाँ, उस पर भी आक्रमण है। उस पर भी आक्रमण है। जो ब्रिटेन की एक सभ्य महिला एक है, जो अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में जा रही है, जो मैं कह रहा हूँ इवन पब में जा रही है, उसकी पर्सनल लाइफ है, कहीं भी जा रही है, स्वतंत्र रूप में जा रही है, अगर उस पर कोई स्ट्रीट के द्वारा, अगर कोई रेसिस्ट के द्वारा कोई अटैक होता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा अटैक होता है, वो भी एक अटैक है, वो भी अटैक है। ये अटैक कई तरीके के अटैक्स हैं आदित्य भाई, लेट अस ये जो भी धर्म को मान रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे जापान के ऊपर अटैक है, वो भी मानवता पर अटैक है। हम तो हिंदुस्तान पर माने ही ना, आपके अमेरिका में चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो धर्म की लिए चल रहा है, उस पर अगर कोई अटैक कर रहा है अधर्मी, वो भी अटैक है। तो पहली बात तो ये अटैक तो बहुत वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। सेकंड चीज आदित्य भाई, आपने कहा कि हमें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। अगर आप नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप निष्क्रिय नहीं रह सकते, करेक्ट। आप जाने अनजाने अधर्म का सहायता कर रहे हैं। राइट। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और कोई आदमी किसी औरत का अगर छेड़ रहा है, और अगर आप मूक दर्शक बने हुए हैं, तो आप मूक दर्शक नहीं बने हुए हैं, आप अधर्म का साथ दे रहे हैं। वो क्यों? अगले दिन वो आपके परिवार पर भी अटैक हो सकता है। करेक्ट। आपने अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी पहचान के द्वारा आपको अपने लेवल की आवाज उठानी पड़ेगी। राइट। अगर आप उस युवक से नहीं लड़ सकते, अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आप चिल्ला तो सकते हैं, राइट। आप हाथ तो उठा सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। आप उस पर हाथ मारे ना, लेकिन आप दोनों हाथ ऊपर उठा के ईश्वर की तरफ दे तो कह सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप रोड पर खड़े होकर चिल्ला तो सकते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है। आप पुलिस को फोन तो कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं मैं। लेकिन जो लोग अधर्म का कार्य होते हुए चुप बैठे हुए हैं, वो ये ना सोचे कि वो धर्म का कार्य कर रहे हैं, नहीं, वो अधर्म का भागीदार बन रहे हैं। यस। अगर विभीषण रावण के, मैं तो बार बार आपके साथ जब भी चर्चा करता हूं ना आदित्य भाई, तो मैं राम के उस पर आ जाता हूं। पता है क्यों? राम आपके आदर्श है और मेरे तो खैर इष्ट है, वो तो मेरे लिए, मतलब मैं तो आजकल रामवंशी लिख रहा हूं, तो मेरे लिए तो राम ही घूमते रहते हैं। पुनः आता हूं, अगर विभीषण लंका में रुक जाते, कहते हैं भाई साहब मैंने क्या करना है, सानू की
अब मैं तो यहीं बैठा हूँ आराम से, तो क्या वो धर्म का पालन करते? नहीं, जाने अनजाने अधर्म का भागीदार बन जाते। उन्होंने रिवोल्ट किया तो कुछ नहीं ना, वो लड़े तो कुछ नहीं, वो छोड़ के आ गए, राम के शरण में आए ना, बट अपने विभीषण ने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया। कंट्रीब्यूट तो उनका बहुत बड़ा है, रावण के बारे में बहुत कुछ बताया उन्होंने, वो विभीषण का योगदान है। क्या हम विभीषण भी नहीं बन सकते? हम गिलहरी भी नहीं बन सकते? क्या हम नल और उसके जैसे हजारों लाखों जो वानर थे जिन्होंने राम सेतु बनाया, वो भी नहीं बन सकते? हम माता सीता को खोजने के लिए करोड़ों करोड़ों वानर सेना चारों दिशाओं में गई, क्या हम वो भी नहीं बन सकते? तो फिर हम बन क्या सकते हैं? हमें ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हम बनना क्या चाहते हैं। अगर हम कुछ ना करें, हम सोचे कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो भाई साहब वो जो खरदूषण है ना, वो शूर्पणखा वो अलग रूप में आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। तो ये निष्क्रिय होना, निष्क्रिय रहना, ये पक्षधर ना बनना, ये बात आपको महाभारत काल में द्रौपदी कांड में भी पता लग जाता है। नहीं, आपने बहुत अच्छा बात, पक्ष लेना आवश्यक है। या यस, तो आप धर्म के पक्ष में है या विधर्म के पक्ष में, कई तब धर्म। आप भी आप रेफरी तो है नहीं, आप तो रेफरी नहीं हो ना, तो फिर आप कैसे, आप मूक दर्शक कैसे हो गए भाई? नहीं, मैंने तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल, मैंने आपको रेफरी का प्रैक्टिकल भी। एग्जांपल किया, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको किया। रोड पर अगर किसी कन्या, किसी मासूम बच्चे के साथ कुछ अगर हो रहा है और आप मूक दर्शक बने हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका कोई योगदान? नहीं, गलत है। यू हैव टू रेजिस्ट, अपनी योग्यता, अपनी ग्राह्यता, अपनी क्षमता, एग्रीड, कोई बात नहीं, बट कोशिश तो करनी पड़ेगी। बच्चा भी करता है आदित्य भाई, बच्चे के साथ अगर आप अधर्म कीजिए तो चिल्लाने लगता है, ये प्रकृति का नियम है। आप बिल्ली का बच्चा छोड़िए, पक्षी होता है ना, पक्षी, चिड़िया, चिड़िया को अगर आप एक कॉर्नर में कर देना, एकदम ऐसे करते करते डालते हो, वो चोंच मारेगी। नहीं, अधर्म को अगर आप टॉलरेट करते हैं तो आप अधर्मी बन जाते हैं। यस, आज मैं और मनोज जी, मैं और आप तो बहुत लंबे समय डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, लोग देखेंगे नहीं। आजकल कलयुग है। कोई कोई बात नहीं, एक भी जागृत हो जाए हमारा कार्य पूरा है आदित्य भाई, एक भी, तो आ, एक भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स पे और हम डिस्कशन करेंगे इस तरह के, और अगली बार करिए। और अगली बार करेंगे। और व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हैं लाइव जो हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं। सम ऑफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी बट यू आर जस्ट वॉचिंग, बिकॉज एक व्यक्ति लिखता है मुझे अभी, हम लोग को, मुझे आपको देखते ही बहुत आनंद आ रहा है इसलिए देख रहा हूँ, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। Our face expressions are like that, I think, I do not know because that. but it is a dharma. It is glowing. It is glowing. It's a glow of a dharma. It's a sound vibration. Yeah. So थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। और यूट्यूब पे जरूर देखिए, और इस पे हम लोगों को कमेंट्स भी करिए और मुझे बताइए क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। एज ए लेखक, हम दोनों लेखक हैं, तो हम दोनों एग्जैक्टली पॉलिटिकल पोजीशन पे बात नहीं करेंगे, बट करते भी नहीं हम लोग को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सिद्धांत पे बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं। तो आप इससे लेसन्स लेके धर्म के लिए जरूर लड़े। we have never taken any stand of any political things, और लेने भी तो एक अलग चीज है, बट हम तो आज सिद्धांतिक रूप से बात कर रहे हैं। लेकिन आप धर्म के लिए जरूर खड़े होइए, हम भी हमेशा धर्म के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग मरीची के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, आप एक्चुअली रावण से स्वयं डायरेक्टली युद्ध करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और जुड़ने के लिए, और आई सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते, थैंक यू।